एवरीबडी इज़ रिप्लेसेबल इंक्लूडिंग मी. अगर मैं बहुत लंबे समय तक सेशंस नहीं करूँगा, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ हाउ मच लव एंड अफेक्शन पीपल हैव फॉर मी, दे विल गो समवेयर एल्स बिकॉज दे वुड ऑल्सो वांट टू लर्न एंड ग्रो अहेड इन देयर जर्नी, एंड दैट इज़ द सेम विद एवरीबडी इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो. आपको एंजाइटी हो रही है, आपको पता है, आपको डिप्रेशन है, आपको पता है, बट आप उससे बाहर निकलने के लिए कर क्या रहे हो? दैट्स इम्पोर्टेंट. Two things that they need to do. One, hire a very good photographer or videographer so that आपके डेली एक्टिविटीज़ के ऊपर आप वीडियोस बनाते रहो, अपने प्रोडक्ट्स के बारे में, अपने स्पेसिफिकेशंस के बारे में. आपके जो कंज्यूमर्स आ रहे हैं उनको रिकॉर्ड करो विद देयर परमिशन, रील्स बना के अपलोड करो. उनके संग जब आप कंबाइंड पोस्ट डालोगे इंस्टाग्राम के ऊपर, तो जैसे देहरादून में अगर एक रेस्टोरेंट है, दिल्ली में, मुंबई में, कहीं पे भी है, उनके पास उन्हीं की सिटी के लोग आएंगे. जब वो कंबाइंड रील अपने सोशल मीडिया पे डालेंगे, हर एक रील से उनको उन्हीं की सिटी के 100 लोगों के बारे में पता चलेगा. अगर ऐसी एक महीने में आप 30 रील डालते हो, तो आप इमेजिन करो आप हज़ारों लोगों तक पहुंच रहे हो विदाउट इन्वेस्टिंग इवन अ सिंगल पेनी. वन थिंग विच हैज़ हेल्प्ड मी अचीव व्हाटएवर वी हैव इन आवर लाइफ इज बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ पीपल हुम आई एम सराउंडेड बाय. आपकी लाइफ में ऐसे लोग होने बहुत ज़रूरी हैं जो कि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा करें. Hi everyone, welcome to Guftagoo with Vimunya again. And I'm really obliged, or you can say very grateful, जो भी हमें response मिला last की videos का. So I thought of coming back again with new guest, with interesting stories, with new topic. So today we are with very interesting guest, and I सब जानते हैं उन्हें already, मुझे introduction देने की ज़रूरत भी नहीं है I think, but फिर भी मैं मेरी तरफ से इंट्रोडक्शन देती हूँ. ही इज़ वन ऑफ द मोटिवेशनल स्पीकर, ही इज़ वन ऑफ द वेरी गुड एंटरप्रेन्योर. सो लेट मी इंट्रोड्यूस मिस्टर राहुल भटनागर. इज अ लीडिंग सेल्स एंड बिजनेस कोच of India. He has mentored and trained lakhs of people across the world. He traveled all over the world. So he has guided multiple business online and has hundreds of mentees earning 8 figures monthly and annually. And he is a MTV fame also, holds world record of delivering 50 consecutive speeches on 50 days. He has delivered 4 TEDx talks and 8 Josh Talk. His session, events and workshop have been attended by 2 million people. Guys, you're listening it, 2 million people. So he have reached out to 2 million people. People know him by his name. He has done over 1 lakhs of sales transaction for himself and has guided his mentee to do over 1 million of transaction. I think that's enough for the introduction, and probably we want to hear from Rahul Bhatnagar how his journey has been so far. उन्होंने आज तक लाइफ में कितने experiences लिए, because I believe life is all about experiences. So how are you doing, Rahul? I'm doing really well. Thank you so much for that amazing introduction, and really happy to be here. Thank you. And I really appreciate, matlab, I remember I dropped a message to you and you decided to come on this podcast with the idea, जो भी हमारा topic है discussion का, you said let's do it, Akansha. So as you people are already waiting कि हम लोगों का topic क्या है to be discussed in this podcast. So this topic is again very close to me, because I think it's very important for every individual to think about himself or herself. क्योंकि आजकल what I believe is लोग दुनिया के बारे में पहले सोचते हैं then अपने बारे में बाद में. That's what I feel. So I thought of talking about discussing this here on this platform so that जो भी हमें सुन रहा हो, at least ये सुन के वो लोग अपने बारे में सोचना तो शुरू करें. Right. Taking decisions also. So guys, we are here with really interesting topic. The topic is self-discovery with Rahul Bhatnagar. All right. So Rahul, as I have already given your introduction, but फिर भी हम आपसे जानना चाहते हैं, सब आपसे जानना चाहते हैं, who is Rahul Bhatnagar as a person? Okay. So मेरे को जो एक चीज़ बहुत ज़्यादा ड्राइव करती है काम करने के लिए, जस्ट लाइक यू सेड, अ लॉट ऑफ पीपल आर नॉट अवेयर अबाउट व्हाट दे कुड अचीव इन देयर लाइफ. हम लोग बहुत ज़्यादा एक हमारे शेल में रहते हैं. इसके पीछे बहुत सारे रीजंस होते हैं. मे बी आर अपब्रिंगिंग, द काइंड ऑफ पीपल हुम वी आर सराउंडेड बाय, पास्ट एक्सपीरियंसेस. सो आई फेल्ट दैट देयर इज़ अ लॉट दैट आई कैन कंट्रीब्यूट इन पीपल्स लाइव्स. That is why we started with our entrepreneurial journey. And right now, my motive is to help a lot of businesses so that they can scale their businesses, because I feel that that is something which is sacred. क्योंकि अगर आप जो human beings हैं, who have been created by God, अगर आप उनकी growth में contribute करते हो, एक business बड़ा होता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को employ करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के घर पे पैसा जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपनी लाइफ में ग्रो करते हैं.
तो वो आई बिलीव इज़ द टॉप मोस्ट फॉर्म ऑफ स्पिरिचुअलिटी, क्योंकि आप उनको लाइफ में कंट्रीब्यूट कर रहे हो। और दूसरी चीज़ मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोगों को लाइफ में मौका नहीं मिल पाता, ओनली बिकॉज़ राइट अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं होती हैं। तो हमारे काम के माध्यम से हम उन लोगों के सामने पहुँचते हैं और उनकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस करते हैं। लाइक जब आपने मेरे इंट्रोडक्शन में भी बहुत सारी चीज़ें बताई, उसमें जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा खुशी देती है, सैटिस्फैक्शन देती है, दैट इज़ द पॉइंट कि लोगों की लाइफ में जो चेंजेस आए हैं, वो बहुत ज़्यादा पुश करता है आपको चीज़ें करने के लिए। बिकॉज़ सी, you can earn money by doing a lot of things, but if you are able to contribute in people's lives, that is something that only few people could do in their lives. So that is what drives us a lot more. एग्जैक्टली सो इन माई लास्ट पॉडकास्ट ऑल्सो, जब मैं और नेहा बात कर रहे थे, तो वो ना, आई बिलीव कि लोग जाके ना वो इनिशिएटिव नहीं ले पाते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर किसी को कोई गाइड कर रहा हो ना, सो दे कैन टेक दैट इनिशिएटिव टू डू दैट। सो फॉर एन एग्जाम्पल, आई स्पोक अबाउट कि आई नेवर गॉट दैट मेंटरशिप इन माई लाइफ कि मैं आगे क्या करूँ लाइफ में। सो वट एवर आई हैव बिकम बाय माई ओन डिसीजंस, नोबडी हैज गाइडेड मी। सो हियर एज यू सेड कि कोई वो एक तो स्पेस में रह जाते हैं, वो डिसीजन नहीं ले पाते हैं, दैट्स व्हाई दे आर स्टिल देयर। सो ऑफ कोर्स दैट्स व्हाई वी आर डिस्कसिंग दिस, Right. कि the power of self discovery, how you can know yourself better, how you can utilize the time which you're spending to others on yourself. So that's why me and Rahul is here and discussing this topic. So first we need to understand from your personal journey कि how does this self discovery came in your life, when you feel कि now I have to do something, अब मुझे कुछ करना है, ऐसी वाली फीलिंग वो कब आई आपको, और व्हाट वाज योर जर्नी फॉर दैट? आई फील ये चीज़ ना बहुत राइटली बोला भी जाता है दैट एंटरप्रेन्योरशिप चूजेस यू। तो जब मैं बहुत छोटा भी था, हम लोग कॉमिक्स पढ़ते थे किराए पे। तो जैसे मैं कॉमिक लेकर आता था किराए पे, 2 रुपए की वो कॉमिक आती थी, मैंने पहले पढ़ी और फिर मैं 5-6 दीदी भैया लोगों को वो देकर आ जाता था कि 2-2 घंटे के लिए आप पढ़ लो। तो मैं 500% की प्रॉफिटेबिलिटी एक दिन में ले रहा था जो उस प्रोडक्ट पे जो मेरा नहीं था। तो मुझे लगा यार ये तो अच्छा है। देन मैं साइकिल पे जाता था और एक दुकान थी, वहाँ से हम कॉमिक्स किराए पे लेकर आते थे एंड विद इन अ फ्यू मंथ्स मेरे पास घर पे 500-700 कॉमिक्स हो गई थी। तो आई स्टार्टेड अर्निंग मनी, उसमें क्लास 5th या 6th में ही था। तो देन आई रियलाइज़ कि यार ये एक आपके अंदर एक इनबिल्ट एबिलिटी होती है। अब आप उसको कितना नरिश कर पाते हो, ऑब्वियसली वो मैटर करता है। सेकेंडली, बिकॉज़ आई यूज्ड टू लिव विद माय ग्रैंडफादर, सो एवरी डे ही यूज्ड टू गिव मी सेंटेंसेस इन इंग्लिश, इसको हिंदी में कन्वर्ट करो, सेंटेंसेस इन हिंदी, इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करो, और मैथमेटिकल क्वेश्चंस मैं रोज़ सॉल्व करता था। अब अगर आप किसी चीज़ को 9 साल तक करोगे, लाइक पीपल से दैट आई एम वेरी गुड विद माय नंबर्स, दैट इज़ समथिंग दैट हैपेंड व्हेन आई वाज़ इन क्लास 1st टू क्लास 9th, क्योंकि तब आप रोज़ जब उसे करते थे, तो आपके लिए वो चीज़ बहुत ज़्यादा ईज़ी हो जाती। करेक्ट। तो वो था। फिर मुझे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम रियलाइज़ हुआ दैट नंबर्स इज़ माय फॉर्टे एंड कम्युनिकेशन इज़ माय फॉर्टे। सो एनीथिंग दैट आई शुड बिल्ड शुड बी रिवॉल्विंग अराउंड दिस ओनली। तो अगर आप अभी भी देखो ना, अगर हम वीडियोज़ बनाते हैं या वेबिनार्स करते हैं या इवेंट्स करते हैं या सेल्स एक्टिविटीज़ करते हैं, या टीम को लीड करते हैं, वो सारी चीज़ों में कम्युनिकेशन प्लेज़ अ पाइवोटल रोल। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लोगों को ये चीज़ पता होनी चाहिए कि व्हाट इज़ माय स्ट्रेंथ एरिया, एंड देन वंस दे हैव आइडेंटिफाइड दैट दिस इज़ माय एरिया ऑफ स्ट्रेंथ, देन एवरीथिंग दैट यू शुड डू शुड बी रिवॉल्विंग अराउंड दैट, बिकॉज़ वो आपको नेचुरली आ रहा है, ईज़िली आ रहा है, और अगर आप उसी को मोनेटाइज़ कर ले जाओगे, तो आपकी फाइट बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। करेक्ट। मतलब आपके पास अगर 5 चीज़ें हैं और आपको पता है कि 5 चीज़ों में ये टॉप मोस्ट है, व्हेरेइन आई एम 8 अपॉन 10 एंड इट कैन आल्सो बी मोनेटाइज्ड, तो उसके ऊपर आपका एफर्ट और एनर्जी जाना चाहिए। फॉर मी इट वाज़ कम्युनिकेशन। लाइक मुझे बचपन में भी याद है, मैं सारे रिश्तेदार, दोस्त वगैरह सब मुझे बोलते थे, "तू बहुत बातें करता है, बहुत बातें करता है। इतना नहीं बोलना चाहिए।" आई एम वेरी हैप्पी आई डिड नॉट लिसन टू दोज़ पीपल। अदरवाइज़ जो भी अपन आज कर रहे हैं उसमें से कुछ भी नहीं हो पाता। तो आपका कोर स्ट्रेंथ दैट कम्स टू यू नेचुरली व्हिच कुड आल्सो बी मोनेटाइज्ड इज़ वेयर यू शुड बी फोकसिंग एंड डूइंग योर वर्क। करेक्ट। मैंने एक बुक पढ़ी है, द बुक नेम इज इकिगाई। तो देयर इज अ पेज जहाँ पर ना एक पाई चार्ट बना है। दैट पाई चार्ट इज टॉक्स अबाउट योर पैशन, वेयर यू आर वर्किंग, एंड व्हाट इज योर इंटरेस्ट। जहाँ ये 3 सर्कल मिलते हैं, दैट्स योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट। अगर आप वहाँ काम करते हैं ना, यू विल ग्रो इन लाइफ, विच इंक्लूड्स योर पैशन, विच इंक्लूड्स योर वर्क एंड योर इंटरेस्ट। लेकिन So- इसमें ना एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेनी अ टाइम्स अ लॉट ऑफ पीपल से दैट यू शुड फॉलो योर पैशन, बट आई डोंट जनरली अग्री विद दैट। I'll tell you the reason why. Even our passion is based upon the experiences that we have had till now. Yeah. For example, जैसे अपर में हम देहरादून से हैं। Hmm. देहरादून में बच्चे लोग अगर क्रिकेट खेलते हैं, मैंने बचपन से वही देखा है, तो मेरा पैशन वही बन जाएगा। मेरे को पता भी नहीं है कि और बहुत सारे एरियाज़ भी हैं जो कि हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, या यहाँ पे कोई फेमस रेस्टोरेंट है, तो मैं फाइट भी कर ले जाऊँगा लोगों से, नहीं यार वहाँ का खाना बहुत ही अच्छा है।
क्योंकि मैंने बाकी जगहों को एक्सप्लोर ही नहीं करा। एक्सप्लोर ही नहीं तो हमारा जो आज की डेट में पैशन है वो उसके ऊपर ही डिपेंडेंट है कि हमने हमारी लाइफ में देखा देखा कितना है। क्या है। और अगर आपका पैशन मोनेटाइज नहीं हो सकता, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द पीपल कम फ्रॉम वेरी हम्बल बैकग्राउंड्स एंड मिडिल क्लास बैकग्राउंड्स, तो अगर आपका पैशन मोनेटाइज नहीं हो सकता है ना, तो आपके पास जो टाइम विंडो है वो बहुत कम होती है कि इसी टाइम विंडो में आपको रिजल्ट लेकर आने। फॉर एग्जाम्पल मुझे मतलब मेरे कुछ वीडियोस हमने डाले थे ब्रो भटनागर करके, ह्यूमरस वाले। आई लव एक्टिंग। आई तो हाँ, और मुझे पता है मैं एक्टिंग में इतनी जल्दी पैसे नहीं कमा सकता यार। तो और ट्रैवल करना भी बहुत पसंद है, तो आप ट्रैवल में भी एकदम से तो पैसे नहीं कमा सकते। नाउ दैट आवर वर्क पेज अस वेल, नाउ वी कैन ट्रैवल ऑल्सो एंड नाउ वी कैन ऑल्सो एक्ट, हमारे वीडियोज में भी, हमारे स्टेज पे भी। सो आइडेंटिफाइंग समथिंग दैट यू कैन मोनेटाइज एंड देन यू कैन लिव द रेस्ट ऑफ योर लाइफ डूइंग थिंग्स दैट यू आर राइट नाउ पैशनेट अबाउट। बिकॉज मेनी अ टाइम्स जस्ट लाइक आई हैव डिस्कस्ड इट ऑलरेडी, हमें पता भी नहीं होता कि हमारा पैशन है क्या, तक हम एग्जैक्टली नई चीजें एक्सप्लोर ही नहीं करते हैं हमारी लाइफ में। एग्जैक्टली आई मीन रिसेंटली आई हैव लर्न स्विमिंग। तो मुझे कभी पता ही नहीं था, मतलब टिल आई वुड से लास्ट 2 years आई एम स्विमिंग। मुझे पता ही नहीं था कि मुझे इतना मजा आता है पानी के अंदर। सो दिस इज व्हाट आई हैव एक्सप्लोर्ड रिसेंटली। सो यू आर राइटली सेड कि हम वो एरिया में एक्सप्लोर ही नहीं करते, तो हमें हमारा पैशन पता ही नहीं होता। कैन यू शेयर योर डिफाइनिंग मोमेंट इन योर लाइफ दैट शेप्ड योर करियर? यार मुझे ऐसा लगता है कि एज सच कोई एक डिफाइनिंग मोमेंट नहीं होता, या मेरी लाइफ में भी नहीं है, पर इट इज़ ऑब्वियसली अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल थिंग्स दैट यू आर डूइंग इन योर ओन लाइफ। फॉर एग्जाम्पल एक वो डिसीजन कि मैं कॉलेज में था, तो जब मैं कॉलेज में भी था MBA में, मैं बैच टॉपर भी था, मैं प्लेसमेंट कमेटी का भी हेड था, मैं टोस्ट मास्टर्स में भी था, मैं मिस्टर फ्रेशर भी था। तो ये सारी चीज़ें होने के बाद मेरे लिए प्लेसमेंट लेना बहुत ईजी था। अब उस प्लेसमेंट को मना करना कि आई वांट टू डू समथिंग ऑफ माय ओन वाज ऑफ कोर्स एन इंपॉर्टेंट डिसीजन। फिर हम देहरादून में थे तो 6 साल तक हम लोग स्ट्रगल कर रहे थे। वहाँ से स्विच करना कि यार ये जो हम कर रहे हैं ये ग्रो नहीं कर सकता है, तो हमें ऑनलाइन जाना पड़ेगा, वो एक इंपॉर्टेंट डिसीजन था। तो आप ना मल्टीपल डिसीजन लेते चले जाते हो और वो चीज़ फिर आपको हेल्प करती है। कभी भी ऐसा नहीं होता, आप किसी भी बिजनेस को भी उठा के देख लो कि जो हम फर्स्ट प्रोडक्ट बनाते हैं वही हमारा बेस्ट प्रोडक्ट भी बनता है। आप अल्टीमेटली उसमें चेंजेस करते चले जाते हो। बट आई फील वन थिंग दैट हैज ऑलवेज हेल्प्ड मी इज द एबिलिटी टू टेक डिसीजंस रियली फास्ट, बिकॉज आई हैव रियलाइज्ड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जनरली एनी ह्यूमन बीइंग डज नॉट टेक मोर देन 7 डिसीजंस इंपॉर्टेंट वंस इन देयर एंटायर लाइफ। हम किस स्कूल में जाते हैं, हमारे घर वाले डिसाइड करते हैं, हम किस कॉलेज में जाते हैं, हम क्या करते हैं, जॉब या बिजनेस, हम कहाँ पे शादी कर रहे हैं, हम एक कौन सा घर ले रहे हैं, हम शायद गाड़ी कौन सी ले रहे हैं, और एक हम अपने बच्चों के लिए कहाँ पे पढ़ाई वढ़ाई का देख रहे हैं। यही 7 डिसीजंस हम लेते हैं। तो अगर एक ह्यूमन बीइंग एक पूरे लाइफ स्पैन में 80 साल में 7 डिसीजंस ले रहा है, और वहीं पे एक दूसरा पर्सन है जो एक साल में 8-9 डिसीजन ले रहा है, इवन इफ आउट ऑफ 9, 8 ऑफ देयर डिसीजंस आर रॉन्ग, in 20 years they'll take 20 prominent decisions. So they will be way ahead of all the other people. So if you ask me one particular area or one particular decision, no. But the ability to take a lot of decisions really fast is what helps you. उससे होता भी क्या है ना? See, anything that we achieve or do not achieve in our life is because of our habits. तो वो हैबिट्स भी आपकी तभी चेंज होंगी जब आपका डिसीजन मेकिंग फास्ट होगा। फास्ट अदरवाइज आप अपने आप को ना रीजन देते रहोगे कि मैं ऐसा ही हूँ, मैं तो यही करता हूँ, मेरे को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, तो आप उस शेल से बाहर ही नहीं निकलोगे। एंड मे बी इन फ्यूचर यूल रिग्रेट कि शायद मैं वो अपॉर्चुनिटी उठा लेता, शायद मैं उस टाइम पे आप कभी डिसीजन ले लेता। अगर किसी भी ओल्ड एज होम में जाते हो जहाँ 70-80 ईयर ओल्ड लोगों से आप मिलते हो, उनका मेजर रिग्रेट यही होता है कि मैंने लाइफ में ये वाला डिसीजन नहीं लिया। बिकॉज द पॉइंट इज, एक बहुत अच्छी चीज मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूंगा। हम लोग को ना सदगुरु जी ने बुलाया था, एक इन पास रिट्रीट हुआ था, तो हम लोग उनके संग बैठे हुए थे, एंड ही सेड समथिंग वेरी पावरफुल। ही सेड दैट ऑल ऑफ अस सिटिंग ओवर हियर आर लूजर्स। So everybody is like, वैसे अच्छे लोग वे लूजर वूजर बोलते हैं। He says, I'll tell you, because all of us we are losing seconds from our life. 1 मिनट के बाद आपकी लाइफ का 1 मिनट कम हो गया, 1 मिनट कम हो गया, so you're losing that. तो आप एवरीबडी इज लूजर over here. तो वो चीज़ मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था कि आप अपने समय के संग क्या कर रहे हो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। बिकॉज जो काइंड ऑफ एनर्जी दैट आई हैव टुडे प्रोबेबली 20 years डाउन द लाइन नहीं होगा। द काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज दैट आई हैव टुडे वो नहीं होगा। तो इसलिए भी आपका डिसीजन मेकिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एग्जैक्टली। सो one day I was talking to one of my colleague and we were discussing कि हम ना time is equal to money today. So अगर हमें I mean I wanted to say in a this way कि अगर हमें टाइम खरीदना है ना तो वो मैं मनी से खरीद सकती हूँ, लेकिन आप टाइम के साथ वाइस वर्सा नहीं कर सकते। दैट्स व्हाट एंड यू आर राइटली सेड कि यू नो हमें थोड़ा सा उस वे में सोचना पड़ेगा, देन ही वी आर एबल टू टेक क्विक डिसीजंस, राइट? जब आपने ये एंटरप्रेन्योर जर्नी स्टार्ट करी थी ऑफ योर लाइफ, व्हाट वाज द चैलेंजेस यू फेस्ड? बिकॉज आई अंडरस्टैंड आई एम सिटिंग हियर, तो मुझे किन किन लोगों को कन्विंस करना पड़ा या मुझे समझाना पड़ा या मैसेजिंग देनी पड़ी,
That's what I also want to know, and people also want to know that when you started your entrepreneur journey, what kind of a challenges you faced and how did you overcome, or tilt and twist करके आपने अपना way बनाया towards this journey, and we are sitting here, you have achieved a lot in these, I mean, past years. So how was your journey actually? यार मतलब अगर हम स्ट्रगल वाले फेस के बारे में बात करें तो वो तो बहुत लंबा पीरियड था। एंड अभी के टाइम पे मैं ऑनेस्टली मुझे रियलाइज़ नहीं होता कि हम वो वाला टाइम कैसे पास कर गए। अब हमने 2011 में मेरा एमबीए कंप्लीट हुआ था। उसके बाद हम देहरादून में आए थे तो 1 साल हमें लगा ऑलमोस्ट हम क्या स्टार्ट करेंगे वो फिगर आउट करा हम लोगों ने। सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि आपको कोई गाइड करने के लिए नहीं था, तो आपको पता ही नहीं था जो आप कर रहे हो वो सही है या गलत। जस्ट बिकॉज़ करना था कुछ ना कुछ तो हम करते गए। तो अगर मैं आपको लिस्ट ऑफ मिस्टेक्स बताऊँ, हमारी कंपनी में हम एक तरीके से 7 पार्टनर्स थे। 7 पीपल डिसीजन मेकिंग में अगर इन्वॉल्व होंगे तो गलतियाँ होंगी ही होंगी। हम अपने पास पैसे नहीं रखते थे क्योंकि मुझे लगता था मेरे पास ठीक-ठाक अमाउंट है, मेरे घर वाले ठीक-ठाक कमा लेते हैं तो मेरा ज़िंदगी चल जाएगी। लेकिन मुझे लगता था कि जो भी पैसे आते हैं आप सबसे पहले अपने टीम मेंबर्स को दो, व्हिच वाज़ अ मिस्टेक। पीपल शुड बी पेड ऑन द बेसिस ऑफ द कंट्रीब्यूशन दैट दे डू। दे शुड नॉट बी पेड ऑन द बेसिस कि उसके पास पैसा नहीं है। तो वो चीज़ हमें नहीं रियलाइज़ होता था। वी वर वर्किंग विद क्लाइंट्स हियर इन देहरादून हू डिड नॉट इवन अंडरस्टैंड व्हाट बिज़नेसेस आर ऑल अबाउट। तो वो अपने कमिटमेंट से हट जाते थे। तो वो हटते थे वो ठीक है, लेकिन हमारी गलती थी कि हम उन क्लाइंट्स के संग वर्क कर रहे थे। हमारा बिज़नेस मॉडल ऐसा था जिसमें रेवेन्यू आ ही नहीं सकता था। तो हमको 5 साल, साढ़े 5 साल लगे। हमने देहरादून में डिस्काउंट कार्ड्स बनाए थे। हमने 50,000 डिस्काउंट कार्ड्स बनाए सारे मैनुअली। तो अगर मेरे को पहले पता होता टेक्नोलॉजी के बारे में या मेरे को कोई मेंटोर कर देता कि भाई ये तो फेसबुक ऐड चला के ये काम 1 महीने में कर सकता है, Correct. क्योंकि फ्री में काट, तो हमारा इतना टाइम, एफर्ट, एनर्जी जाता ही नहीं। फिर जो हम काम कर रहे थे क्योंकि उसमें कोई रेवेन्यू मॉडल इन्वॉल्व नहीं था, तो आप किसी को पैसे दे भी नहीं सकते थे। और हम लोगों के पास ये अतिशयोक्ति नहीं है, सच बात है। हम लोगों के पास 1 महीने में 500 ही रुपए होते थे। और इमेजिन आप एमबीए में थे, इतना अच्छा कर रहे थे एंड देन सर्वाइविंग एट जस्ट 500 रुपीज़ पर मंथ। लाइक मेरे को रेंट नहीं देना था कि मैं घर पे रहता था, खाने के पैसे नहीं देने थे। तो फ्यूल के अलावा मेरे पास 500 ही रुपए होते थे 1 महीने। तो अभी अगर मैं सोचता हूँ तो मुझे खुद रियलाइज़ नहीं होता कि यार वो हमने कैसे कर लिया। एंड ये भी एक बहुत बड़ा ड्राइविंग फोर्स है क्योंकि और भी बहुत सारे लोग हैं जो बहुत मेहनत करते हैं। ये एक एग्जांपल मैं बार-बार देता हूँ, जैसे हमारे पीछे एक वॉल है। आप कितनी भी ताकत लगा लो, आप इस वॉल को कितना भी धक्का दे दो, ये वॉल हिलेगी नहीं यहाँ से, राइट? देयर इज़ अ डोर ओवर हियर, आपको उस डोर से ही बाहर जाना है। वो डोर के पास तक जाना कैसा है वो आपको एक मेंटर ही बता सकता है। Correct. तो वो 5 साल, 6 साल की जो हमारी जर्नी थी, वो बहुत सारा हम लोग को चीज़ें सिखा के भी गई। बट देन आई ऑल्सो फील दैट हैज़ मेड अस वेरी पावरफुल। आई हर्ड अ कोटेशन फ्रॉम मिस्टर अनुपम खेर, जिसमें उन्होंने बोला था कि एक बंदा जो भीगा हुआ होता है, उसको फिर बारिश से डर नहीं लगता। तो अब उसकी वजह से ना मुझे डर नहीं लगता डिसीजन लेने में। जैसे जब हम हमारे इवेंट्स करते हैं, तो इवेंट्स में बहुत सारा पैसा लगता है। पैसा आने से पहले क्योंकि आपको इतने एक्सपेंसेस करने पड़ता है। तो वो करने में मुझे डर नहीं लगता क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जब आप 500 रुपए महीने में सर्वाइव कर चुके हो, उतना बुरा फेज़ तो कभी भी ज़िंदगी में नहीं आ सकता है। तो वो Exactly. सारी चीज़ों ने हमको बहुत ज़्यादा पावरफुल बनाया हमारी जर्नी में। I would say in this way कि आपने इतना कुछ ऑलरेडी देख लिया है, सो टुडे अगर आपको कोई डिसीजन लेना है तो आप वो सोचते ही नहीं हो कि आई विल सर्वाइव वो दिस। प्रॉब्लम जैसा नहीं लगता फिर। लगता नहीं है वो प्रॉब्लम कि दिस इज अ प्रॉब्लम, ओके आई विल टेक दिस डिसीजन, आई विल सर्वाइव इट, मुझे पता है। सो आई थिंक दैट्स और अ वेरी इसीलिए मैं इस चीज़ को ना दुखी के संग या इमोशनल होके मैं नहीं बताता ऑनेस्टली, क्योंकि मेरे को पता है यार ठीक है, देयर आर पीपल हु हैव फेस्ड मच चैलेंजिंग सर्कमस्टांसेस, हु हैव गॉन थ्रू टफर सिचुएशंस। वी वर प्रिविलेज्ड इनफ कि हमारे पास इतना तो था कि हम देहरादून में कर ले जा रहे थे। एंड अगर हमने वो सब नहीं करा होता ना, तो अभी के टाइम पे जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, एक तो हम उन रिजल्ट्स को वैल्यू नहीं करते, चेरिश तो कभी भी नहीं करते, और अपने पैसे को भी आप उतना सम्मान नहीं देते। तो अब हमको पता है कि वो पैसा कमाना बहुत मुश्किल था। तो आज के टाइम पे व्हाटएवर वी डू, वी हैव अ लॉट ऑफ ग्रैटिट्यूड फॉर दैट। ऑफ कोर्स। सो दैट इज़ व्हाट हेल्प्स यू अ लॉट। Of course, that's I also believe, and I always tell to my viewer, I always have a gratitude towards the thing which I'm doing in my life, and whatever my parents have supported so far in this journey. They have made me, stand in this position ki Akansha can take decision in her life for an right. So वो power उन्होंने हमें बचपन से देना शुरू कर दी थी. You are free to take decisions. राइट। कई बार कई लोगों के साथ, पेरेंट्स के साथ ऐसा होता है, दे आर नॉट लेट देयर चिल्ड्रन टेक डिसीजन, दे टेक डिसीजन। जनरली दिस इज अ इंडियन सोसाइटी, तो ऐसा होता है कि आप कौन से स्कूल में जाओगे, स्टार्टिंग फ्रॉम देयर, कौन से कॉलेज में जाओगे, आप कौन सा कोर्स करोगे। आई माई सेल्फ डिड मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जिसका आज मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ। हाँ, कोई यूज नहीं है। वट एवर आई एम डूइंग बिकॉज ऑफ माई स्किल सेट। सो दैट्स वॉट आई मीन,
अगेन वी आर कमिंग बैक टू सेम टॉपिक कि वो क्विक डिसीजन मेकिंग लाइफ में होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एंड अगर आपने बहुत बुरा पीछे देख चुका है तो आप वो रिस्क टेकिंग एबिलिटी रख सकते हो लाइफ में कि यू कैन टेक दैट रिस्क इन लाइफ. So now I think we should move to more towards entrepreneurship and leadership, Okay. because of course you are a leader, as I have mentioned in your introduction. आप इतने सारे लोगों के साथ कनेक्टेड हो, you do every weekend webinar, events, physical events. I know it took a lot of effort. I also have done for multiple organization where I was working. So I think it put a lot of effort, number one, to engage that kind of audience. Number two, आपके सारे shows sold out जाते हैं. That I know, right? That is also a very interesting thing, कि राहुल के सारे shows sold off जाते हैं. Do you want to tell people that your upcoming event which is coming? So if you can give 2 minutes. का फनल ग्रोथ समिट हम लोग कर रहे हैं, उसका 6th एडिशन है 7th 8th एंड 9th ऑफ मार्च को. एंड एवरीबडी शुड बी अ पार्ट ऑफ दिस इवेंट बिकॉज मैं प्रॉक्सिमिटी में बहुत ज़्यादा बिलीव करता हूँ कि आपकी प्रॉक्सिमिटी में कौन कौन से लोग हैं. तो जब आप इवेंट में आते हैं आपको 1500 से 2000 लोग मिलते हैं जो अपनी लाइफ में एफर्ट डाल रहे हैं, चीज़ें सीखने का प्रयास कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं. तो आपको एक तो जो एनर्जी वहाँ पे मिलती है वो आपको बहुत हेल्प करती है. देन वेन एवर वी डू आर इवेंट्स आर वेरी स्ट्रक्चर्ड. हम लोग स्पीकर्स भी ऐसे शॉर्टलिस्ट करते हैं कि पहले हम हमारे इवेंट का एजेंडा बनाते हैं. सो डे 1 इज़ फॉर माइंडसेट, ऑफर्स, ऑडियंस आपको कैसे बिल्ड करनी है. डे 2 इज़ ऑन सेल्स, सेल्स में आपको क्या क्या ऑपरेशंस करने हैं, टीम बिल्डिंग में क्या क्या चीज़ें करनी है. और फिर डे 3 आते आते हम लोग स्केलिंग के ऊपर वर्क करते हैं. तो हमारे इवेंट 3 दिन में 42 घंटे चलता है, यानी 14 घंटे. वैसा नहीं है कि कॉर्पोरेट इवेंट्स की तरह 9 बजे शुरू हुआ 6 बजे खत्म हुआ विद लंच एंड टी कॉफ़ी ब्रेक. ये सब चीज़ें नहीं होती हैं. मतलब मैं और सौरभ, मेरा जो छोटा भैया, हम इस पे फाइट करते हैं कि यार सुबह आधे घंटे पहले शुरू कर लेते हैं इवेंट, शाम को आधा घंटा लेट कर लेंगे तो तुझे और मुझे आधा घंटा और बोलने के लिए मिल जाएगा, हम और ज़्यादा चीज़ें लोग को सिखा पाएंगे. और ये ऐसा इवेंट है जिससे कि कल हम लिस्ट बना रहे थे, हमने हंड्रेड्स ऑफ सक्सेस स्टोरीज क्रिएट करी. बिकॉज जो अभी हमने हमारे बिजनेस में करा है, हम बहुत ही ट्रांसपेरेंटली लोगों को पास ऑन कर देते हैं दैट दे कैन डू इट इन देयर बिजनेस. उसका एक और रीज़न ये भी है कि हम लोग इनसिक्योर नहीं है. जैसे कई लोग को होता है ना इनसिक्योरिटी की, लोग कॉपी कर लेंगे वो. मुझे लगता है यार देयर इज सो मच अवेलेबल ऑन दिस प्लैनेट इन आवर कंट्री कि इन सब चीज़ों से आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए. Correct. आप और लोगों की लाइफ में कंट्रीब्यूट कर सकते हो. और इस बार जो हमने स्पीकर्स भी बुलाए हैं, देयर इज वन पर्सन बाय द नेम मिस्टर जे अब्राहम. ही इज स्पीकिंग इन इंडिया फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम. आज तक इंडिया में कोई नहीं ला पाया, हमारे साथ वो पहली बार आ रहा है. सेकंड स्पीकर जो है डॉक्टर वेलुमणि, जो थायरो केयर के फाउंडर है. और बाकी और ऐसे स्पीकर्स हम लोग और अनाउंस करने वाले हैं. सो एनीबडी हु कम्स टू द इवेंट इज गोइंग टू गेन अ लॉट फ्रॉम द सेम. Of course, I will try to be there definitely on those dates. One thing, which I think everybody want to know. So, when you run an organizations, I mean, of course, for you it's multiple platform for you, but when I specifically talking about leadership, right? So, जब आप किसी business को खड़ा करते हो, right? So, you of course require a team. So, what do you think, what kind of a impact your team member put on your outcome? Number one. Number second question was, बहुत ज़्यादा हमें सुनने को मिलता है जब वी वर्क इन कॉर्पोरेट कल्चर एंड पीपल थिंक इन दिस वे कि दिस इज माय थिंग, आई विल अचीव इट, मुझे कोई रिप्लेस नहीं कर सकता. आई हैव हर्ड दिस लॉट मेनी टाइम. सो व्हाट आर योर पॉइंट ऑफ व्यूज ऑन दोज थिंग्स? एवरीबडी इज रिप्लेसेबल इंक्लूडिंग मी. अगर मैं बहुत लंबे समय तक सेशंस नहीं करूँगा, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ हाउ मच लव एंड अफेक्शन पीपल हैव फॉर मी, दे विल गो समवेयर एल्स बिकॉज दे वुड ऑल्सो वांट टू लर्न एंड ग्रो अहेड इन देयर जर्नी. एंड दैट इज़ द सेम विद एवरीबडी इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो. अब यार इसमें ना 2 चीज़ें होती हैं. मतलब एक तो ये है, बहुत सारे ओनर्स ऐसे होते हैं, स्पेशली स्मॉल बिजनेस ओनर्स, जिनको कि टीम मेंबर्स हायर करना एक एक्सपेंस लगता है. और वो उनको बहुत ही कम अमाउंट पे कर रहे होते हैं, लेकिन एक्सपेक्टेशंस बहुत ही ज़्यादा रखते हैं. और फिर परेशान भी होते हैं कि यार ये उन एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल क्यों नहीं कर रहे. तो आपको अगर अच्छे टीम मेंबर्स चाहिए, यू नीड टू पे देम वेल. एक ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है. दूसरा, जो भी काम कर रहा है एक इंसान, कभी भी हमको इस कंप्लेसेंट जोन में नहीं आना चाहिए कि यार मेरे को कोई हटा नहीं सकता या मेरे को रिप्लेस नहीं कर सकता. ऐसा कुछ नहीं होता. हम लोग जिस प्लैनेट पे रहते हैं उसमें 800 करोड़ लोग रहते हैं. हमारे आने से पहले पता नहीं कितने लोग आके जा चुके हैं. हम लोगों का अगर अस्तित्व देखा जाए तो इतना छोटा सा होता है यार. सबसे बड़ी चीज़ तो ये है. और अगर कोई एक ऑर्गेनाइजेशन पहले से चल रहा है तो वो आपके ना होने के बावजूद भी चलता वो है, दैट्स व्हाट, अब वो पहले भी चल रहा था आगे भी चलता है. और आगे भी चलता रहेगा. एंड you are here for some period of time in that मुझे ऐसा लगता है, organization. अगर मैं आपके क्वेश्चन को और थोड़ा सा समझ सकूं, कि बहुत सारे लोग एक बहुत ज़्यादा ईगो अपने संग कैरी करते हैं.
जिसको हम लोग फ्रेजाइल ईगो भी बोलते हैं। और ईगो भी एक इंसान के अंदर तभी होता है अमूमन जब अंदर बहुत सारी इनसिक्योरिटीज होती है, करेक्ट अदरवाइज ईगो कभी भी नहीं होगा। करेक्ट मतलब जब हम हमारा डिस्काउंट कार्ड्स वाला बिजनेस करते थे तो मुझे अभी भी याद है अच्छे से, और ये मैं मतलब किसी को भी डिमीन करने के पर्सपेक्टिव से नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जैसे मैं किसी से मिलने गया, सपोजिटली मेरे को लगता है अभी मैं जितना समझ रहा हूँ उनका मंथली जैसे रेम्यूनरेशन होगा माना 80,000 रुपीज़ होगा, पर जब मैं उनसे मिलता था और मैनेजरल पोजीशन पे होंगे, जब मैं उनसे मिलता था तो इस तरीके से कि हमें डिस्कार्ड कर देते थे कि ये क्या है, हमें मत सिखाओ, ये मत करो, अ लॉट ऑफ एरोगेंस वाज देयर। मैं तो यार जितना भी अचीव कर लूँ कभी भी वो उस तरीके का एरोगेंस आस-पास भी नहीं आता। क्योंकि मुझे लगता है एक तो वो इनबिल्ट भी है, पेरेंटिंग की वजह से भी है, एंड सेकंड बीइंग हम्बल इज़ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ बिकॉज़ दैट हेल्प्स यू ग्रो। आपको अगर ये लगता है कि यार मैं इस पोज़ीशन पे हूँ तो मेरे अंदर ईगो आ गया, उसी दिन आपकी ग्रोथ होनी बंद हो जाती है, राइट, जाएगी। दैट्स व्हाट आई हैव आल्सो हर्ड। एंड लेट मी टेल you and the audience, I am also reading a book called Ego is the Enemy, which I was talking to just Ashutosh, where we are shooting right now. राइट। So we were discussing ki, ego hona is not a good thing. I think we have spoke about more entrepreneurship, leadership. So let's talk about why we are here for. So what do you think? What does self discovery mean to you, and why it is important for today's world? एक तो बहुत बड़ी चीज़ क्या है ना, राइट नाउ देयर इज़ अ लॉट ऑफ मीडिया, देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शंस, और उस डिस्ट्रैक्शन की वजह से आपको ये पता होना चाहिए कि यार मेरा, ये मैंने पहले भी बोला है इसमें, मेरा एरिया ऑफ स्ट्रेंथ क्या है। बिकॉज जब आपको आपका एरिया ऑफ स्ट्रेंथ पता होगा तो आप बहुत फोकस के संग काम करोगे, एंड फोकस इज़ द अल्टीमेट थिंग विच इज़ गोना हेल्प यू बिकम सक्सेसफुल। बिकॉज होता क्या है ना, देखो इंटरनेट पे अनफॉर्चुनेटली हर कोई अमीर है। तो जब आप देखते हो आपको लोग अपना वल्नरेबल साइड नहीं दिखाना चाहते, Correct. लोग सिर्फ ये दिखाना चाहते हैं मेरी लाइफ में ये भी अच्छा हो रहा है, ये भी अच्छा हो रहा है, एंड देन व्हाट हैपेंस इज पीपल टेंड टू कंपेयर देयर ओन लाइफ विद द साइड दैट पीपल आर पोर्ट्रेइंग ऑन द इंटरनेट व्हिच इज नॉट इवन ट्रू, Correct. राइट। तो जब आप उनके संग कंपैरिजन करते हो तो आपको हमेशा दुख ही होता है, क्योंकि हर किसी को ये लगता है कि यार ये मुझसे बेहतर क्यों कर रहा है, ये मुझसे बेहतर क्यों कर रहा है। तो वहाँ पे ये चीज़ समझना है कि यार मैं किस चीज़ में अच्छा हूँ और मैं कहाँ पे अपना वर्क कर रहा हूँ, वो फोकस बना के रखना वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। Correct. One thing which has helped us a lot is that we don't get carried away. जैसे मुझे नज़र आता था कि कोई और इंसान है, वो कुछ और नया कर रहे हैं। What happens is whenever something new comes, irrespective of whether a person has awareness about it or not, people used to jump to that new thing. क्योंकि उन्हें लगता था कि ये मेरे को जल्दी रिजल्ट दे सकता है। एंड देन आई सी कि 5 साल के बाद भी लोग अटके हुए हैं बिकॉज वो एक के बाद एक अलग चीज़ों पे जंप करते Jump रहते हैं। कर रहे हैं। तो आपका फोकस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको पता होना चाहिए कि यार ये चीज़ मेरे को करनी है। नाउ व्हेन आई से this does not mean that you will not change your way of working if whatever you are doing currently is not getting you the right results. आपका तरीका आपको चेंज करना पड़ेगा, लेकिन जो आपका अल्टीमेट टारगेट है वो सेम ही रहना चाहिए। जैसे हमने जब शुरू करा, हमारा प्रोडक्ट कम्युनिकेशन के ऊपर था, फिर हम बिजनेस हमारा बढ़ाते गए तो हमने कम्युनिकेशन एंड बिजनेस मास्टरी करा। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आई रियलाइज हमारे बहुत सारे मेंटीज हैं जो हेल्प चाहते थे बिजनेस को ग्रो कराने के लिए, तो हमने हमारा बिजनेस ग्रोथ प्रोग्राम लॉन्च करा। तो आपने जैसे जैसे चीज़ें सीखते गए आप वो पिवट करते चले गए, लेकिन मैंने ऐसा नहीं करा कि मैं कोई एक चीज़ कर रहा हूँ फिर मैं स्टॉक्स में चला गया, फिर मैं एनएफटी में चला गया, बिकॉज आई एम नॉट सेइंग दोज थिंग्स आर बैड, आई डोंट हैव इनफ अवेयरनेस अबाउट दोज थिंग्स, सो मैं उसमें डाइवर्ट नहीं होता हूँ। वो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। So you, just to summarize your answer, you mean to say be focused जो आप कर रहे हो, and आप तरीके अलग अलग यूज कर सकते हो, बट अपना टारगेट नहीं भूलना चाहिए। That's what Right. you want to say, right? And why being focused is also very important is because whatever you want to achieve in your life, आपने जितना भी उसको टाइम दिया है, एक्चुअली में आपके पास उससे बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है, एंड दैट्स विद एवरीथिंग इन लाइफ। तो हम लोग क्योंकि हमारे टारगेट्स को बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक तरीके से देखते हैं कि ये इतना जल्दी हो जाएगा, इस वजह से हम लोग डिसहार्टेंड हो जाते हैं। इसलिए भी ज़रूरी है कि आपका फोकस बना रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। whatever you feel is going to take this much time, it's going to take much longer. And therefore, being in that right zone is very important, essential. Absolutely, Rahul. Thank you for lot of input which you are giving on this platform for lot many audience out there. One more question which I have, and I really want to know from your side also. What daily practices or habits have helped you in your self discovery process, of course, and I mean, I would say what people can do in their day to day life for this reaching out to this term self discovery. यार मैं ना इसमें और कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बताना चाहूँगा। हमको ना बचपन से यही चीज़ लगती है दैट हार्ड वर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज हमें बचपन से भी हमारे घर वाले भी यही चीज़ बताते हैं। इट इज़
बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मुझे ये रियलाइज हुआ है दैट, और ये एक नवल रविकांत जी ने भी बोला था, दैट यू मेक मोर मनी वाया हैंडशेक्स देन यू विल मेक वाया हार्ड वर्क ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो अब मुझे ये लगता है कि जो चीज़ें मेरे को बहुत नेचुरली आती है ना, जब मैं उन चीज़ों में अपना टाइम और एनर्जी लगाता हूँ, तो वो मुझे बहुत हेल्प करता है। ओके। यानी मेरी हैबिट्स से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि मैं कौन सी चीज़ों में अपना टाइम और एनर्जी नहीं लगाता हूँ, वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मुझे पता है कि वीडियोस बनाना, लोगों को सर्व करना एंड एसोसिएशंस करना, मेरा टाइम, एनर्जी और एफर्ट सिर्फ इन्हीं चीज़ों में जाता है। तो उसकी वजह से मेरे को एक तो थिंक टाइम बहुत ज़्यादा मिल जाता है। इसकी वजह से कि मैं प्लान कर सकता हूँ कि हमें और कौन-सी चीज़ें करनी है। और वहाँ से मेरे लिए चीज़ें डेलीगेट करना भी बहुत ईज़ी हो जाता है कि ये चीज़ें मैं टीम को दे देता हूँ, इवन इफ दैट रिक्वायर्स मी टू पे एन एडिशनल अमाउंट टू देम, व्हिच वी कुड हैव अदरवाइज़ सेव्ड आल्सो। लेकिन अगर वही बात है ना, आप अगर इस पे फोकस करोगे देन यू वुड नॉट फोकस ऑन द बिगर पिक्चर। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक हैबिट जिसने कि हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करा है, मैं पता नहीं है बहुत बार बोल भी चुका हूँ इस चीज़ को, इज़ गेटिंग थिंग्स डन मच फास्टर देन अ लॉट ऑफ अदर पीपल। और उससे क्या हुआ है ना, बिकॉज़ इट इज़ अ हैबिट दैट आई हैव इनकलकेटेड इन मी, ऑल माय टीम मेंबर्स आल्सो वर्क ऑन द सेम प्रिंसिपल। करेक्ट। जैसे अभी हम ये इंटरेक्शन शुरू करने से पहले एक मेरी टीम मेंबर से बात कर रहे थे। तो उनके संग पहले ऐसे होता था कि अगर 4 दिन के बाद कोई इवेंट है, तो वो अभी से पीपीटी के ऊपर वर्क कर रहे हैं या अभी से बहुत ज़्यादा घबरा गए हैं कुछ। तो मैंने बोला यार 4 दिन में अगर हम एक काम के ऊपर लगाएँगे, तो आप बहुत कम चीज़ें करोगे। करेक्ट। कहिए हम कर सकते हैं 1 दिन के अंदर, आप टेंशन मत लो इसको। तो वो बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करता है। गेटिंग मोर डन इन अ वेरी स्मॉल टाइम फ्रेम इज़ व्हाट एक्चुअली हेल्प्स यू। एंड दूसरी चीज़ ना, आप कैसे लोगों के संग अपना एसोसिएशन बना सकते हो, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। ऑफ कोर्स, आई मीन आई आल्सो बिलीव इन इट कि जिसकी लेकिन अगर आप एक्सपर्टीज। से मैं आपको एक चीज़ बस बीच में मैंने रोका, अगर आप मेरे से एक पर्टिकुलर कोई पैटर्न पूछोगे या हैबिट पूछोगे, वैसा नहीं है मेरी लाइफ में, ऑनेस्टली स्पीकिंग, कि जैसे लोगों का होता है ना मॉर्निंग रिचुअल्स या ये वो, मुझे लगता नहीं है उसका इतना ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। मुझे लगता है कि हम ना अपने आप को ही रीज़न्स देने लग जाते हैं कि मुझे अगर अच्छे फ्रेम ऑफ माइंड में जाना है तो मुझे ये भी करना ज़रूरी है। मेरे लिए ऐसा नहीं होता है। मैंने जब मेरा वेट लॉस भी करा था 16-17 किलो, तो बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं और मेरे एक फ्रेंड बैठे हुए थे, मैं ऐसे चाय पी, मैंने रखी, मैंने कहा बाबा मैं जिम जा रहा हूँ। कह रहे ऑल ऑफ अ सडन क्या हुआ? मैंने कहा आज से जाना ज़रूरी है। आई वेंट और उसके अगले 6 महीने में 16 किलो वज़न कम कर दिया था। तो वो बहुत जल्दी-जल्दी करना होता है। मतलब एनीथिंग दैट आई फील कुड बी एन एक्सक्यूज़ फॉर मी फ्रॉम गेटिंग क्लोज़र टू माय टारगेट्स और डूइंग स्टफ, उसको हम बहुत जल्दी से एलिमिनेट कर देते हैं लाइफ में। करेक्ट। आई वांटेड टू टॉक मोर अबाउट जो शायद हमने बहुत सालों पहले कभी बात करी थी, जो मेरे दिमाग में घर कर गई थी, आई वुड से। तुमने मुझे बोला था कि स्टार्ट इन्वेस्टिंग ऑन योरसेल्फ। अबाउट द मॉनेटरी, वी आर टॉकिंग अबाउट मनी हियर। सो जिस दिन आप अपने पे पैसा लगाना शुरू कर दोगे, यू विल स्टार्ट लविंग योरसेल्फ। दैट्स व्हाट आई आल्सो अप्लाइड, एंड I also felt really good about that thing कि I mean, either it could be your learning process, either it could be in your outlook, either it could be your clothes. I mean, whatever you like. Trust me, Rahul, आज की डेट में ना मेरा जो मन करता है ना, I do it. आई जेन्युइनली फील दैट सेल्फ इन्वेस्टमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आई विल टेल यू व्हाई। सबसे बड़ी चीज़ आप जो सीखोगे, जानोगे, वो तो बात की बात है। बहुत सारे लोग ना अपने आप को इतना काबिल ही नहीं समझते कि वो अपने ऊपर इन्वेस्ट करें। ये एक बहुत बड़ा कारण है। देखो क्या होता है ना, हम लोग डिप्राइव्ड होते हैं सेल्फ लव से, बिकॉज़ बचपन से हम कोई भी चीज़ कर रहे होते हैं, तो हमें बोल दिया जाता है तुम ये नहीं कर सकते, यू आर नॉट गुड एट इट, यू आर नॉट गुड एट इट। तो आपकी सिर्फ कमियाँ ही कमियाँ आपको बताई जाती हैं। तो आपको लगता है यार मेरे अंदर कुछ अच्छा ही नहीं है, मैं किसी लायक ही नहीं। तो अगर आपके सामने कोई अपॉर्च्युनिटी आती है व्हिच रिक्वायर्स यू टू इन्वेस्ट अपॉन यू और योर लर्निंग, वी ऑलवेज फील मोर देन द अपॉर्च्युनिटी वेदर इट इज़ वर्थ इट और नॉट, वी फील वेदर आई एम वर्थ इट और नॉट। Correct. तो जब आप अपने आप को ही नहीं मानते इस काबिल, तो आपके पास चीज़ें नहीं आती हैं। मतलब मुझे ना हर चीज़ को लेके ये वाला रियलाइज़ेशन हमेशा होता है, यार मेरे संग नहीं होगा तो कैसे किसी और के संग कैसे हो सकता है? Correct. क्योंकि आपको अपने लिए, मैं जब बचपन में पढ़ाई भी करता था, तो मैं शीशा लेके पढ़ाई करता था। जैसे 2 चैप्टर पढ़े, मैं ऐसे बाल-बूल दे रहा हूँ, मैं इनको देख रहा हूँ, उसके बाद मुझे याद है कि पापा ने मुझसे कुछ मँगाया, वो बैठे सोफ़े पे शीशे पे बैठ के कह रहे ये क्या है? कहा, आप किनारे रखो ना उसे। तो जब तक आपको अपने ऊपर प्यार नहीं होगा ना, तब तक आपके पास अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं आती, बिकॉज़ आप अपने आप को उतना काबिल ही नहीं समझते। Correct. So, हुँ, हुँ। yeah, so I also think in this direction कि जब तक आप अपने आप से प्यार नहीं करोगे ना, आप अपनी वर्थ कभी नहीं समझ पाओगे। So there is a term of self love which I got to know in 2020. So और जहाँ उस 2020 से जो मैंने जर्नी अपने लिए शुरू करी है, it's not about my organization, it's not about my relationship, about my parents, about my in-laws, anything. So I think जो आपने सेल्फ लव करना सीख लिया ना लाइफ में, बिकॉज अगर आपने वो सीख लिया ना, आप कुछ भी हासिल कर सकते हो अपने लिए। दैट्स व्हाट आई बिलीव, एंड
आई वर्क इन दैट डायरेक्शन कि यू नो आपको ये चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, एफर्ट करना पड़ेगा, आपको उठ के वो पानी लेना पड़ेगा, तभी आप पी सकते हो। दैट्स अ सेल्फ लव। मतलब आई वुड से कि अगर आप बेड में लेटे हुए, देयर आर लॉट मेनी पीपल हु गोज थ्रू एंजाइटी, डिप्रेशन, which is a really interesting topic to discuss. Probably will in next video or some other day we will discuss that. तो आपको एंजाइटी हो रही है, आपको पता है, आपको डिप्रेशन है, आपको पता है, बट आप उससे बाहर निकलने के लिए कर क्या रहे हो, दैट्स इम्पोर्टेंट, यू नो, दैट्स कॉल्ड सेल्फ लव। सो फॉर एन एग्जाम्पल, आप बेड में लेटे हुए यू वांट टू गेट अप फ्रॉम द बेड, आप चाहते हो, पर आप हाथ पैर नहीं हिलाओगे तो आप कैसे उठोगे उस बेड से? आप अगर इफ यू आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ योरसेल्फ, दैट इज बिकॉज यू आर नॉट लविंग योरसेल्फ इनफ। करेक्ट, इट्स एज सिंपल एज दैट। करेक्ट, और अगर आप किसी भी टॉप अचीवर को देखोगे ना, दे आर इंसेनली इन लव विद देयर ओन सेल्फ, बिकॉज वही चीज़ उनको ड्राइव देता है। और उससे क्या होता है ना, आप अपने आप को काबिल भी समझते हो। अब जैसे आपने एक क्वेश्चन पूछा था अभी कि हमारे इवेंट्स इतने सोल्ड आउट होते हैं, उसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि हम अपने आप को इतना काबिल समझते हैं। हम 5,000 लोग का इवेंट कर रहे थे, हमारी इंडस्ट्री में इंडिया में किसी ने भी नहीं करा था। और मैंने और भाई ने बोला यार 5,000 लोग, तो सौरभ का आंसर ये था कि यार 135 करोड़ की आबादी में हम 5,000 लोग नहीं ला सकते क्या? हाँ बिल्कुल लेकर आ सकते हैं। सो हमारे कुछ मेंटीज हैं who talk about manifestation, law of attraction, even Vastu. They're like, sir, you are not even knowing this, but this is like the topmost form of attracting good things in your life. कि आप अपने आप को खुद ही इतना काबिल समझते हो कि हमें लोगों को चीज़ समझानी पड़ती है, उनको बार बार रीट्रेट करना पड़ता है। करेक्ट, लेकिन आप अपने आप को इतना काबिल समझते हो, उसका एक और भी रीज़न हो जाता है। क्या होता है ना, देखो क्या है, सी मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर ऑलवेज थिंकिंग देयर एंटायर लाइव्स, सो दिस इज हाउ आई पुट इट। और जैसे मेजॉरिटी लोग यहाँ पे हैं, दे विल कीप थिंकिंग कीप थिंकिंग कीप थिंकिंग। देयर आर अ फ्यू पीपल हु टेक इनिशिएटिव्स, सो जो लोग इनिशिएटिव लेते हैं वो उनसे आगे चले जाते हैं। देन आफ्टर टेकिंग द इनिशिएटिव हमारे पास एक दो गलतियाँ होती हैं, क्योंकि पहली बार कर रहे हैं, तो आपके आसपास के लोग आपको डिमोटिवेट कर देते हैं। हमने आपको पहले ही बोला था कि नहीं होगा नहीं होगा, तो लोग यहाँ पे रुक जाते हैं। फिर कुछ लोग और आगे जाते हैं, देन यू टेक मोर डिसीजंस। सो बाय द टाइम द अदर पर्सन इज थिंकिंग, यू आर वे अहेड ऑफ अ लॉट ऑफ अदर पीपल। आई मीन, ये तो मैं आपको भी बोलूंगा, और आप लोग भी जो वीडियो देख रहे हैं, आपने भी कोई ना कोई एक वीडियो देख के ये पक्का खुद को बोला होगा, बे यार मैं इससे अच्छा वीडियो तो बना सकता हूँ। बट द वेरी रीजन वाई दैट वीडियो इज डूइंग वेल इज बिकॉज दैट वीडियो एग्जिस्ट। लेकिन आपका वीडियो एग्जिस्ट करता ही नहीं। एक सिंपल सी चीज़ यहाँ पे ये है, हमारा वर्स्ट वीडियो होता है द वीडियो दैट वी हैव नेवर क्रिएटेड। क्योंकि लोगों को ये लगता है कि जो मेरा पहला वीडियो है वो वर्स्ट वीडियो है। नहीं, वो तो अकम्पलिशमेंट है कि आपने ज़िंदगी में पहली बार करा। जो चीज़ आपने करी नहीं, एक्चुअली दैट इज़ योर वर्स्ट वीडियो। बहुत सारे लोग इसी वाली फाइट में खत्म हो जाते हैं। मैं क्या करता हूँ ना, जैसे हमारा इवेंट होता है ना, तो हमारे इवेंट का टिकट 5,000 रुपये से शुरू होता है, और जो मैक्सिमम टिकट कैटेगरी होती है वो 3 लाख रुपए तक जाती है। जो 3 लाख वाले कैटेगरी में लोग आते हैं, उनका मेरा माइंडसेट सिमिलर होता है। आई पर्सनली वांट टू टॉक टू अ लॉट ऑफ पीपल जो 5,000 वाली कैटेगरी में आ रहे हैं, और मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि यार इतना नॉलेज हम आपको दे रहे हैं, हम इतना एफर्ट लगा रहे हैं, तो भी आप 5,000 रुपये अपने ऊपर इन्वेस्ट करने से क्यों डरते हो? क्योंकि मेरे को उन लोगों का माइंडसेट समझना भी है, तभी मैं उन लोगों को और ज़्यादा सर्व कर पाऊँ। एग्जैक्टली, उसी वाले जोन में ही ना मैक्सिमम लोग अटके रह जाते हैं। एक और चीज़ जो मैं आपको भी और लोगों के संग भी शेयर करना चाहूँगा, लॉट ऑफ पीपल फील दैट देयर इज अ लॉट ऑफ कंपटीशन। एंड ये मैं कोई सिर्फ मोटिवेशन के बेसिस पे नहीं बता रहा हूँ आपको, रेटोरिकल चीज़ नहीं बता रहा हूँ, बट द रियलिटी इज कंपटीशन होता ही नहीं। बिकॉज बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट ही चीज़ें कर रहे होते हैं, एवरीथिंग एंड एनीथिंग दैट दे आर डूइंग। तो जब आप ऐसे लोगों के संग compete कर रहे हो, इफ यू आर जस्ट अ लिटिल बेटर देन अदर पीपल, यू विल डेफिनेटली विन। एक और चीज़ है यहाँ पे, लॉट ऑफ पीपल फील that we need to be extremely good or perfect in order to win, but no, that's not the case. You just need to be marginally better than the other people whom you are competing with. If you're marginally better, you're still going to be number one, right? करेक्ट, And that is what matters. करेक्ट। एक्चुअली जब आप देखोगे लोग स्विमिंग रेस करते हैं, Yeah. तो दैट Seconds मैटर, का अंतर। सेकंड्स का अंतर होता है। दैट्स व्हाट मेक डिफरेंस। कोई फर्स्ट में खड़ा है, कोई सेकंड में और कोई थर्ड में, बिकॉज ऑफ द सेकंड्स। So absolutely, you said very right कि marginal difference create a lot of difference. Absolutely right. All right. So do you think the digital age and the social media make self-discovery easier or more challenging? What do you So think? it has become very difficult for people to realize their own strengths, because there is a lot of content which is available. So people are not able to figure out which content is good for me, which is bad for me, या मेरे लिए कौन सी चीज़ ईजी है या मुश्किल है। बिकॉज अनफॉर्चुनेटली क्या होता है ना, देखो दो चीज़ें बिकती हैं, एक फियर, और दूसरा अगर आप किसी को कोई भी चीज़ बहुत आसानी से बता दो करने के लिए। द रियलिटी चेक ओवर हियर फॉर मी इज आई डोंट सेल फियर एंड आई डोंट सेल इजी सॉल्यूशंस। तो मेरे लिए बेचना बहुत मुश्किल है। जैसे किसी का भी वीडियो होता है ना, तो लोग उस वीडियो में बोलते हैं कि आप ये नुकसान हो रहा है आपका, आई डोंट स्टार्ट माई वीडियोज लाइक दैट, ये पैसे आप इतने आसानी से कमा सकते हो, आई डोंट गिव फॉल्स होप्स टू पीपल। बिकॉज लोगों को इस तरीके का कंटेंट दिखता है, तो एक तो वो कांस्टेंट फियर में रहते हैं
कि ये होगा या नहीं होगा, और दूसरी तरफ उनको कोई बता रहा है कि चीज़ें बहुत ईज़िली हो जाती हैं, तो वो दोनों में से किसी एक चीज़ के ऊपर आसानी से भटक जाते हैं और वहीं पे लोग अटक जाते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका इंटरनेट पे जो आप कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो, एक क्वेश्चन खुद से पूछना बहुत ज़रूरी है, इज़ दिस कंटेंट एक्चुअली हेल्पिंग मी और नॉट? Am I only watching this because this is giving me momentarily happiness, or am I watching it because this is also contributing in my growth? Because there are a lot of videos, especially of motivational speakers, who might give you a high, but it is not going to help you in the longer run. Correct. तो वो डिफरेंशिएशन जब लोगों को करना आ जाएगा, तब उनके लिए सेल्फ डिस्कवरी बहुत ईजी हो जाएगा. अदरवाइज इट हैज बिकम वेरी डिफिकल्ट बिकॉज ऑफ द फैक्टर्स दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. ऑफ कोर्स, क्योंकि आजकल सब कुछ सोशल मीडिया में अवेलेबल तो है, हमें कोई मशीन चलानी नहीं आती है, वी गो टू सोशल मीडिया, वी गेट कि गूगल में क्या है, यूट्यूब में क्या है, वी वर्क लाइक दैट, एंड यू नीड टू डिसाइड कि क्या आप कंटेंट देख रहे हो और उससे क्या लर्निंग ले रहे हो. So I think it's very important to choose your content very wisely and taking those learning from that content. So that is also very important. And उसमें भी एक छोटा सा पॉइंट और ऐड करेंगे कि आपने जो सीखा, आप उसको कितना जल्दी इंप्लीमेंट कर रहे हो अपने लिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. आपने सीखा, आपको फील गुड भी हुआ, बट इफ यू डोंट इम्प्लीमेंट इट राइट अवे, देन इट्स नॉट गोइंग टू मेक एनी डिफरेंस. फॉर एग्जांपल, जितने भी लोग अभी वीडियो देख रहे हैं, आप एक छोटा सा काम करो, आप लिख लो अपने पेपर पे ऐसे कौन से 3 डिसीजन है जो आपको पता है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपने अभी तक नहीं लिए हैं, और फिर उन डिसीजंस को आप इमीडिएटली लो, और वहां पे क्वेश्चन आप खुद से पूछो कि ये डिसीजन लेने में मेरा कितना रिस्क इन्वॉल्व है और मेरे पास कितना रिवॉर्ड है. अगर रिस्क इन्वॉल्व बहुत कम है और रिवॉर्ड रेशियो बहुत ज्यादा है, डेफिनेटली यू शुड गो फॉर इट. तब ये वीडियो बनाना हमारे लिए सार्थक होगा कि आप ये इनिशिएटिव अभी ले जल्दी से. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. Absolutely right. I think जो राहुल ने एक्टिविटी दी, you should try it bit of second, जैसे राहुल बोलता है, take decision at that point of time. So जब आप ये देख रहे हो, I would suggest तभी वो डिसीजन ले लो और वो लिख लो, right? हमने एक मेंटोरिंग प्रोग्राम लिया था, उसकी फीस $20,000 थी. सौरभ ट्रैवल टू द यूएस, और वहाँ पे ना उन्होंने अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट करी कि मेंटोरिंग अपॉर्चुनिटी है. वहाँ पे बाकी सारे लोग डॉलर्स में कमा रहे थे, हम लोग अकेले थे जो कि इंडियन करेंसी में कमा रहे थे. बट सौरभ वाज द फर्स्ट पर्सन हु इन्वेस्टेड 16 लाख रुपीस वहाँ पे. उस समय पे 80 रुपीस कुछ का डॉलर था. अभी हमारे इवेंट में जय अब्राहम जी आ रहे हैं. अगर कोई उन्हें इंडिया में नहीं ला पाया तो इसका मतलब है उनकी स्पीकिंग फीस भी बहुत ज्यादा होती, मच मोर देन बॉलीवुड एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस टॉप नॉच जो हैं. हमको उनके संग 1-to-1 भी टाइम लेना था, तो हमने 1-to-1 के लिए भी अलग से पे करा. I understand. एक वेबिनार होता है, वेबिनार जो हम करते हैं, सिर्फ वेबिनार को आप कैसे और इफेक्टिवली इंप्रूव कर सकते हो, उसके लिए हम लोगों ने 8 लाख रुपीस इन्वेस्ट करा था. अब अ लॉट ऑफ पीपल विल नॉट इवन थिंक, क्योंकि लोग पहले ही अपना दिमाग बंद कर लेते हैं कि मैं इतना पैसा नहीं लगा सकता. Exactly. तो आपको ये चीज अगेन, ये रियलाइजेशन कि यार मैं कितना अमाउंट लगा रहा हूँ, मेरा रिस्क इन्वॉल्व कितना है और मेरे को अपसाइड कितना ज्यादा मिलने वाला है, वो बहुत मैटर करता है. इवन टुडे मी एंड सौरभ, वी डोंट ट्रैवल इन बिजनेस क्लास. व्हेनेवर वी गो टू प्लेसेस, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स आई डोंट लिव एट वेरी हाई एंड होटल्स, और मैं कौन सी गाड़ी रखता हूँ, मेरे पास कौन सी बाइक है, ये सब भी मैं इंटरनेट पे कहीं दिखाता ही नहीं. किसी को भी नहीं पता वो सारी चीज़ों के बारे में. आई कीप इट वेरी. I think your friends know. हाँ, मतलब जो मेरे ऑफिस वालों को तो पता ही मेरे सारे क्या. लेकिन मतलब पॉइंट क्या है ना यहाँ पे, कि इन सब चीज़ों के ऊपर इन्वेस्टमेंट करने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम उन चीज़ों पे इन्वेस्ट करें जो मेरे को आगे सब्सटैंशियल रिजल्ट्स देने वाले हैं. correct. वो बहुत इंपॉर्टेंट. I remember we were having a phone call and you told me that you booked the air in, I think you were in Singapore or maybe in Dubai, मुझे याद नहीं आ रहा है. You were in some foreign country and you told me कि you are at Airbnb. You have booked Airbnb for the entire team and you are also living there. So that's a very, differentiating thing. That's what you said right now. So आपको क्या लगता है कि सेल्फ डिस्कवरी से क्या एज अ इंडिविजुअल वो अपना पैशन और मे बी एरिया ऑफ इंटरेस्ट ढूंढ सकता है कोई इंडिविजुअल? होता है, लेकिन उसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो मैंने पहले बोला. आपके पैशन को अगर आप मोनेटाइज नहीं कर सकते तो उस पैशन का कोई फायदा नहीं है. अगर मेरे को कोई पूछे तो मुझे सोना बहुत ज़्यादा पसंद है, कितना भी सो सकता हूँ, लेकिन मैं उससे पैसे नहीं कमा सकता. तो वो मेरा अगर पसंद भी है, मेरा पैशन भी है, तो भी वो मोनेटाइज नहीं हो सकता. तो अगर आपका पैशन मोनेटाइज नहीं हो सकता तो आप मत करो उसको, सिंपल चीज़ है. लेकिन आपको सेल्फ डिस्कवरी से फ़ायदा क्या होता है कि आपके लिए रास्ता आगे बहुत ईजी हो जाता है, बिकॉज तब आपके लिए डिस्ट्रैक्शंस खत्म हो जाते हैं कि आपको कौन सी चीज़ें नहीं करनी है. करेक्ट. वो बहुत ज़रूरी है. अब जैसे मेरे लिए क्या है ना यार, देखो, बिकॉज कम्युनिकेशन, और मेरे को जेन्युइनली वाली चीज़ लगता है, पता है दैट आई हैव बीन गिफ्टेड. तो जब आपको गिफ्ट दिया, मतलब जो चीज़ें लोगों को बहुत मुश्किल से आता है, क्लिक होता है, मेरे को टक करके क्लिक हो जाता है. कोई नई चीज़ करनी होती है, एकदम से आ जाता है. बिकॉज ऑफ माई चाइल्डहुड, मैं मतलब अपने रिलेटिव्स के दादाजी के संग रहता था, तो दादाजी वाली साइड से मेरे लिए चीज़ें बहुत अच्छी थी. बट आई ऑल्सो हैड अ स्टेप ग्रैंड मदर, तो वो मेरे लिए एक बहुत डिफिकल्ट फेस था. मैं उसमें और डिटेल्स में नहीं जाऊँगा, लेकिन उसकी वजह से ना मेरे मन में भी एम्पैथी बहुत ज़्यादा है लोगों के लिए.
तो आई ऑलवेज लुक एट इट कि अगर मेरे को वो चीज़ों से डिप्राइव नहीं रखा गया होता तो वो चीज़ें मैं और लोगों के लिए नहीं कर पा रहा होता. आई फील दैट इज ऑल्सो अ वे ऑफ सेल्फ डिस्कवरिंग, बिकॉज आई डू नॉट लुक एट इट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव यार आई वॉज ट्रीटेड बैडली, but I look at it from the perspective that a lot of people who have been treated like that will always live a lowly life, because उनको लगेगा low key life, because उनको ये लगेगा यार मैं ना ज़्यादा कुछ अचीव करने के काबिल ही नहीं हूँ, क्योंकि आपको इतने समय तक कम आंका जाएगा, बताया जाएगा. तो उससे भी मैं बहुत सारे लोगों को निकाल पाता हूँ. करेक्ट. वो भी सेल्फ डिस्कवरी की ही वजह से हो पाया है. तो मुझे अब ऐसा लगता है कि वो सारी चीज़ें मेरी लाइफ में इसलिए हुई बिकॉज आई वॉज डेस्टाइन्ड टू डू व्हाटएवर आई एम डूइंग टुडे. तो अगर वो सब नहीं होता, एम्पैथी नहीं आता, बिजनेस में स्ट्रगल नहीं होता, तो अभी आपको ये चैलेंजेस जो आते हैं ये मुश्किल नहीं लगते. जैसे अभी वी हैव अ कंटेंट हेड, वी हैव एन ऑपरेशंस हेड, वी हैव अ वीडियो हेड. पहले तो सारी चीजें मैं खुद ही करता था. आई नो. तो अब जब मेरे टीम वाले बोलते सर ये नहीं हो रहा, मैंने कहा आप कैसी बातें कर रहे हो यार, ये ऐसे टक होने वाली चीज़ है. अगर आपने वो जर्नी नहीं देखी होती तो आप ये सब चीज़ें नहीं रियलाइज कर पाते. तो वो डिफिकल्ट फेज भी होना इंपॉर्टेंट है अभी के टाइम पे, बिकॉज मेंटोरिंग होती है तो बहुत सारे लोग वो डिफिकल्ट फेज से बच जाते हैं, क्योंकि उनको हम वो गलतियां जो नहीं करनी है वो समझा देते हैं. Correct. You use the term destined. Of course, you're destined to do this, but I think your hard work and your consistency is also the thing which नहीं बाबा, इसमें तो मैं ये भी बोलना चाहूंगा ना, a lot of people are destined to achieve greatness in their life, but you will only go as far in the career that you have chosen for yourself. For example, अगर आपने गवर्नमेंट जॉब चूज करा, गलत सही की बात नहीं कर रहा हूं मैं यहाँ पे, उस गवर्नमेंट जॉब का टॉप मोस्ट ये है कि आप जिस पोजीशन पे आए आप उससे 4 पोजीशंस ऊपर जा सकते हो. आपने वही जर्नी चूज करी है तो आप उसके बियॉन्ड तो जा ही नहीं सकते ना. करेक्ट. अब जो मैंने जर्नी चूज करी है मुझे पता है कि उसमें और बहुत कुछ कर सकते हो. हैविंग सेड दैट, अगर एक पर्सन को खुशी मिल रही है जो वो काम कर रहा है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है. हैप्पीनेस इंडेक्स इज द टॉप मोस्ट थिंग करेक्ट. करने के लिए. लेकिन एवरीबडी, इफ वी आर बोर्न ऑन दिस प्लैनेट, वी नीड टू फाइट विद मिलियंस ऑफ स्पर्म्स जस्ट टू बी हियर, राइट? इसका मतलब आप ऑलरेडी बहुत ज्यादा काबिल हो और आप ऑलरेडी डेस्टाइन्ड हो अच्छी चीजें करने के लिए, लेकिन आप उस डायरेक्शन में काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो वो बहुत ज्यादा मैटर करता है. Of course, that's really important कि as you said कि आप already destined हो कि आप इस planet पे हो तो कुछ करने के लिए हो. Correct. So that's really important point. So one more thing which is very important and which I wanted to talk, how a individual or a person measure her or his self discovery journey. वो उस चीज को मेजर कैसे करे कि अच्छा मैं ये कर तो रही हूँ, क्या ये सही डायरेक्शन में जा रहा है. फॉर एन एग्जाम्पल, यू नो, आई कम फ्रॉम सेल्स बैकग्राउंड, तो हम हमेशा नंबर पे खेलते हैं कि आज 0 था तो कल 1 लाख है, कल 1 लाख है तो परसों 3 लाख, 5 लाख, करोड़. सो हाउ डू यू डिफाइन दिस सेल्फ डिस्कवरी कि ये इम्प्रूव भी हो रहा है. आपको अगर इसको इम्प्रूव करना है ना, आपको अपने सर्कल को रेगुलरली चेंज करना पड़ेगा. वो बहुत इंपॉर्टेंट है. अब जैसे हमारा, मैंने आपको बताया, बहुत सारे लोग जिनके संग अभी हम लोग हमारा टाइम स्पेंड करते हैं, दे आर डूइंग 10 टाइम्स बिगर देन मी, रेवेन्यू जनरेशन के टर्म्स में, टीम के टर्म्स में. तो आप ऑटोमेटिकली इंप्रूव करते चले जाते हो. अगर आप उसको डिफाइन करने लग गए कि जो मैं अभी कर रहा हूँ वो अच्छा है या बुरा है, देखो दोनों चीजें होनी चाहिए. एक तो सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड एंड अकम्प्लिशमेंट होना चाहिए, एंड सेकेंडली आपके अंदर वो ड्राइव भी होना चाहिए कि और ज्यादा करना है. अगर आप यहाँ पे खुश हो तब दिक्कत नहीं है, यू कैन बी हैप्पी ओवर हियर. लेकिन अगर आपको उससे बाहर निकलना है, आपको रियलाइजेशन भी तो तभी होगा ना जब आप ऐसे लोगों के संग टाइम स्पेंड करोगे जो आपसे और बहुत ज्यादा अच्छा कर रहे हैं. मतलब अगेन, इफ आई एम इन अ रूम, ये बोला भी जाता है ना, इफ यू आर द स्मार्टेस्ट पर्सन इन दैट रूम यू विल ग्रो. हाँ, you leave that room. That's what तो the आपको पता ही saying. नहीं चलेगा. तो आप देखो दोनों चीजें, एक व्हेन यू आर मेकिंग प्रोग्रेस, आपने कहाँ से शुरू करा, आप कहाँ तक पहुंचे, वो तो आपको पता चलेगा ही चलेगा. लेकिन उसके बियॉन्ड जाने के लिए आपको अपने सर्कल को चेंज करना बहुत इंपॉर्टेंट है. वेरी इंपॉर्टेंट. आपने एक चीज बहुत अच्छी बोली कि आपने कहाँ से शुरू करा और आप कहाँ हो वो मेजर करना बहुत इंपॉर्टेंट है. सेकेंडली, आई वांटेड टू से दिस थिंग हियर. आई वाज लुकिंग एट वन वीडियो, आई थिंक 3 रात पहले मैं वो वीडियो देख रही थी. उसमें कहा जा रहा था कि आप मुझे, नॉट फॉर एन एग्जाम्पल, आप किसी को किसी से कंपेयर कर रहे हो, ठीक है, बट वो सेम पेस नहीं है. आप ये भी तो देखो आपने कहाँ से शुरू करा, उसने कहाँ. हाँ, आई थिंक एक वीडियो मैंने देखा था, हाँ शाहिद कपूर का ही वो वीडियो था, मुझे एकदम क्लिक हो गया. उसने बोला है कि आप ये भी तो देखो आपकी जर्नी शुरू कहाँ से हो रही है और उसने कहाँ से शुरू करा. देन अगर तुम सेम बेस पे हो, देन इफ यू आर कंपेयरिंग, देन इट इज जस्टिस फॉर दैट मेजरमेंट. बट मैं ना यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगा, क्योंकि मेरे को ये चीज रियलाइज होती है, दिस इज माय सुपर पावर, जो बहुत सारे लोगों के संग नहीं होता, एंड दैट इज बीइंग इन द मोमेंट. जैसे अभी हम पॉडकास्ट कर रहे थे, वहाँ पे उन्होंने दरवाजा खटखटाया तो आई वाज अवेयर क्या हो रहा है, यहाँ पे ये लोग क्या कर रहे हैं, हम अवेयर क्या हो रहा है. ऑल्दो आई एम विद यू यहाँ पे,
उसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये होता है ना कि जब भी मैं कोई काम कर रहा होता हूँ, तो मेरी लाइफ में बाकी क्या चीज़ें चल रही होती हैं ना, मैं उनको दरकिनार कर देता हूँ। और ये मैक्सिमम लोग नहीं कर पाते हैं, क्योंकि मैं आपके साथ हूँ, लेकिन मेरे दिमाग में अगर बाकी चीज़ें चल रही हैं, अब मेरा इवेंट है, मेरी 3 दिन के बाद मेरी एक क्लोजिंग भी है, अगर मैं उन चीज़ों के बारे में सोचता रहूँगा ना, तो मेरे को नुकसान होगा। और दूसरी चीज़, जभी भी मैं कोई काम करता हूँ, आई हैव ऑलरेडी गिवन दैट कमांड टू माई सेल्फ कि ये बहुत ही तोड़ होने वाला है। अब उसकी वजह से क्या होता है ना, फिर आप इस चीज़ पे फ़ोकस नहीं करते कि यार मैं कहीं कोई गलती ना कर दूँ। करेक्ट, और जब आप इस पे फ़ोकस नहीं कर रहे हो, तो आप ऑटोमैटिकली अपने परफ़ॉर्मेंस के ऊपर फ़ोकस करो। करेक्ट, तब आपको डिस्ट्रैक्शन से भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये बहुत सारे लोग नहीं कर पाते हैं। करेक्ट, एक, बीइंग इन दैट मोमेंट, एंड दूसरा अपने आप को एक कमांड देना कि यार ये हो जाएगा। तब करेक्ट। आपके लिए चीज़ें सरल हो जाती हैं। फॉर एन एग्जाम्पल इसी बात पे आई वांटेड टू टॉक सो आई मीन इन माय प्रोफेशनल जर्नी यू गो कम अक्रॉस लॉट ऑफ इंटरव्यूज तो जब मेरी इनिशियल जर्नी शुरू हुई थी ना तो मैं बहुत सोचती थी यार क्या होगा इंटरव्यू में रिजेक्ट हो जाऊंगी नाउ व्हेन आई गो यू नो व्हाट विथ विच माइंडसेट आई गो मैं ऐसे जाती हूँ कि यू नो आकांक्षा दिस इज मोर लाइक अ कॉन्वर्सेशन व्हाट दे विल आस्क आपने क्या किया है इन दीज ड्यूरेशन राइट और आउटकम भी आपको पता है इज इट यस और नो यही होने वाला है तो व्हाई आर यू यू नो वेरी हेजिडेंट और अपने आप को क्यों जबरदस्ती आप घबरा रहे हो उस प्लेटफॉर्म पे जाने के लिए रिजल्ट आउटकम आपको पता है टू ही पॉसिबिलिटी है इधर यस और नो राइट और क्या पूछने वाले हैं वो भी आपको पता है इट्स अबाउट योर जर्नी विच यू हैव डन सो आई ऑलवेज टेल टू माई फ्रेंड्स माई प्रोफेशनल कलीग्स कि इंटरव्यूज आर मोर लाइक अ कॉन्वर्सेशन फॉर माई वर्टिकल बिकॉज देर आर वर्टिकल जहाँ पर लोगों के साथ टेक्निकल यू नो केसेस भी होते हैं टेक्निकल डिस्कशंस भी होता है बिकॉज दैट्स देयर फोटे सो दैट्स व्हाट आई ऑलवेज से कि यू नो लिव इन द मोमेंट इट्स जस्ट अ कॉन्वर्सेशन आप अपने आप को इतना हेजिटेट और घबराओ मत उस चीज से क्या होगा आउटकम भी आपको पता ही है एक्चुअली so on that note I want to end this question before moving to further question I want to play game with you so this is a new thing which I have added to my podcast last time मैंने ये नहीं किया था so हम आपसे पहले आपके पर्सनल प्रेफरेंसेस डालेंगे पूछेंगे एक्चुअली एंड आपको विद इन अ सेकंड जॉब करते हुए आपको वो आंसर बताना है सो दिस विल बी वेरी इंटरेस्टिंग गेम आई थिंक टी कॉफी और एनर्जी ड्रिंक कॉफ़ी, okay early bird or a night owl नाइट आउल। one gadget you can't live without मेरा फ़ोन ही है यार, बाकी मैं गैजेट्स यूज़ करता नहीं honestly ज़्यादा। favorite vacation spot आई गो टू अ प्लेस कॉल्ड खाओ याय, वो बैंकॉक से 2 घंटा दूर है, क्योंकि वहाँ पे ना बहुत कम लोग जाते हैं, भीड़ बहुत कम होती है, बहुत पीसफुल है। अब आपने इस प्लेटफॉर्म पे बता दिया है तो people are going to search about that जाना मत, बहुत सारे लोग जाओगे तो खराब मत करना यार, बहुत शांत जगह है वो। all right another fitness or meditation फिटनेस, मेरे लिए मेडिटेशन का मतलब मेरा काम है। very nice I mean you're saying it very right meditation is work for you it's a very bliss thing which you have I would say reading book or listening to a podcast नाइदर। neither you बुक्स बहुत कम पढ़ी हैं, और मैं मतलब पॉडकास्ट का अगर मुझे कुछ समरी मिल जाए, मैंने इसका रीज़न भी मैं देना चाहूँगा ऑल द शॉर्ट, बहुत सारी ना इधर-उधर की भी बातें होती हैं, मेरे से होता नहीं है। अगर कोई मेरे को उसका समरी दे दे किसी बुक का, अगर वो होता तो वो मैं पसंद करता करना perfect ज़्यादा। mountains or beaches यार I want to know this because you are from mountain and you beaches के और पास तुम बीचेस में रहते थे हाँ, but time out for this now नहीं बीचेस कर सकते हैं हम इसको। कर सकते हैं नहीं क्या करना है ये है, मेरे पास ना प्रॉब्लम क्या है कि मैं ना जिस भी जगह जाता हूँ, दिस इज समथिंग दैट है मेरे अंदर, मैं वहाँ का होके रह जाता हूँ। जैसे जब मैं बहुत पहले बिहार गया था, मैं 19 ही साल का था, तो उस समय पे जिस जगह में मैं गया था, आप यकीन नहीं मानोगे, वहाँ पे एक दिन में 8 घंटे बिजली आती थी बस। बडी वुड हेट, मैं जब वहाँ से भी आ रहा था मुझे बहुत दुख हो रहा था कि यार मैं यहाँ से क्यों जा रहा हूँ। तो मैं जिस जगह का जाता हूँ मेरा अटैचमेंट उस जगह के संग हो जाता है। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है आई फील। और बुरी भी मे बी आई डोंट नो क्विक चॉइसेस जो आपको करनी है इंस्टाग्राम और यूट्यूब इंस्टाग्राम, व्हाई हमें किलो के हिसाब से फॉलोअर्स मिले हैं हमें वहाँ पे, थाईला अपने लीड जनरेट करे हैं, वाओ तो फिर इंस्टाग्राम ऑलवेज ओके मनी और फेम फेम। ओके टीम वर्क और अ सोलो हसल नहीं, टीम वर्क एनी टाइम भाई। नेटवर्किंग इवेंट्स और क्वाइट ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन नेटवर्किंग, आई एम मोर ऑफ अ पीपल्स पर्सन। one goal which you are chasing right now and you have to be very truthful मैं एक, अगर मैं मनी वाला गोल बताऊं तो मेरे को एक बार वो चाहिए कि 100 करोड़ मेरे बैंक अकाउंट में पड़ा हुआ, wow वो मनी वाला गोल है। और इम्पैक्ट के टर्म्स में मेरे को ऐसा चाहिए कि मिनिमम हम 5,000 लोग ऐसे क्रिएट कर सकें, जो काम मैं कर रहा हूँ
एटलीस्ट उसके 50% कैपेसिटी पे करें, देन आई फील वी वुड हैव डन अ वेरी गुड। You want to create a channel like you. पीपल लाइक अस, People like you. Absolutely right. I remember मैं राहुल भटनागर से आई थिंक 3-4 साल पहले जब हम मिले थे तो मैंने राहुल से एक बहुत डीप कॉन्वर्सेशन करी थी। देयर वाज पर्सनल थिंग व्हिच आई हैव डिस्कस्ड इट विद यू। आई थिंक वो आपने वो वीडियो में डिस्कस भी किया था। आई रिमेंबर आपने वो वीडियो मुझे भेजी भी थी। सेकंड इज़ मैंने राहुल से पूछा था व्हाट यू वांट टू डू? सो राहुल ने उस टाइम मुझे बोला था आई वांट टू बिकम अ पॉलिटिशियन एंड आई वांट टू क्रिएट अ डिफरेंस। सो इज़ इट स्टिल देयर इन यू? आगे चल के होगा वो। होगा। सो हम देखेंगे, है ना? I will see that thing really soon. Okay. What's one thing you would tell to your 18-year-old self? Focus on developing your own self. Everything else, money, fame, attention would Uh-huh. automatically come. Time मत waste करो अपना। Exactly. If you could inspire one thing in people, what would it be? Start believing more in yourself. Most people don't do that. और आपके आसपास के लोग भी आपको अपने ऊपर भरोसा नहीं करने देते हैं। आप जितना खुद को समझते हैं, आप उससे बहुत ज़्यादा काबिल हैं। Mm-hmm. एक थ्योरी भी है कि आप अपने आप को जैसा समझते हैं, आप उससे 25% अट्रैक्टिव ऑलरेडी होते हैं। Wow. तो आपके पास बहुत कुछ है करने के लिए और बहुत कुछ अचीव करने के लिए। Definitely. What's your life motto in a single sentence? Sentence. Yes. It's very difficult for you, I know, because you talk a lot. Yeah. Till the time you have got energy to do things, keep going. It's very important. So you want to Here say? on this planet, that means that you have a specific purpose, and that's critical. So you mean to say keep going. That's Keep going. what one sentence. Perfect. Yes, this is the topic which we really want to discuss. I think हमने हमारी पूरी वीडियो में पूरे पॉडकास्ट में उस बारे में बात भी करी है. Quick decision making. What do you want to talk about? I mean, what do you want to have a discussion in this era? Quick decision making. मैं एक छोटा सा एग्जांपल लोगों को देना चाहता हूँ। एक पेपर निकालो, उस पेपर पे लिखो कि पिछले 5 सालों में आपने क्या सब्सटैंशियल प्रोग्रेस करी है। तो अगर आप 5 साल आपकी लाइफ के जो कभी भी वापस नहीं आने वाले हैं, प्राइम ईयर्स ऑफ योर लाइफ, अगर आप अटके हुए हो, दैट इज बिकॉज यू आर नॉट टेकिंग मोर डिसीजंस। तब आपको समझना चाहिए कि आप ग्रो क्यों नहीं कर रहे हो अपनी जिंदगी में। इट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ योर ability or your talent or lack of opportunities, but it is only because you're not taking enough decisions in your life. It's as simple as that. Absolutely right. और वो तभी आप सेल्फ रियलाइजेशन भी कर पाओगे जब आप इस एक्टिविटी को करोगे। Exactly. Any points which you want to give to our audience who are, watching us? How can, local business, can grow in the market more? How? Two things that they need to do. One, hire a very good photographer or videographer so that आपके डेली एक्टिविटीज़ के ऊपर आप वीडियोस बनाते रहो, अपने प्रोडक्ट्स के बारे में, अपने स्पेसिफिकेशंस के बारे में। आपके जो कंज्यूमर्स आ रहे हैं उनको रिकॉर्ड करो विद देयर परमिशन, रील्स बना के अपलोड करो। उनके संग जब आप कंबाइंड पोस्ट डालोगे इंस्टाग्राम के ऊपर, तो जैसे देहरादून में अगर एक रेस्टोरेंट है, दिल्ली में, मुंबई में, कहीं पे भी है, उनके पास उन्हीं की सिटी के लोग आएंगे। जब वो कंबाइंड रील अपने सोशल मीडिया पर डालेंगे, हर एक रील से उनको उन्हीं की सिटी के 100 लोगों के बारे में पता चलेगा। अगर ऐसी एक महीने में आप 30 रील डालते हो, तो आप इमेजिन करो आप हज़ारों लोगों तक पहुंच रहे हो विदाउट इन्वेस्टिंग इवन अ सिंगल पेनी। ये हर किसी को करना बहुत ज़्यादा Exactly. And I also believe in networking and, as you said in the podcast कि handshake करना ज़्यादा important है rather than अभी आपने कुछ choices में बोला you believe in networking. So networking, collaboration will give you more visibility, more experience, and आप उनके experience से भी बहुत कुछ सीख सकते हो. Right. So now my audience also wanted to know what is their biggest expense. मैं इसका ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आपको आंसर दूंगा। जब भी हम लोगों से पूछते हैं कि आपका बिगेस्ट एक्सपेंस क्या है, कुछ लोग बोलते हैं मेडिकल बिल्स, कुछ लोग बोलते हैं टैक्सेस, कुछ लोग बोलते हैं कि घर की जो किस्त जा रही है, बट द रियलिटी चेक इज आपका बिगेस्ट एक्सपेंस है गैप। मैं बताता हूँ क्या गैप है। अगर आप एक इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हो और आप इस लेवल पे काम कर रहे हो और आप एक इंडस्ट्री में कोई और है जिसका रेवेन्यू आपसे 20 गुना ज़्यादा है, आपका रेवेन्यू और उनके रेवेन्यू के बीच में जो गैप है, दैट इज वॉट योर रियल बिगेस्ट एक्सपेंसेस। दे नो थिंग्स दैट यू आर नॉट अवेयर अबाउट एंड दैट इज द रीजन वाई दे आर देयर, एंड ट्रस्ट मी, दैट इज योर बिगेस्ट एक्सपेंस इन लाइफ। So I think everybody wanted to know this rule. I think सबने वो MBA में पढ़ा होगा, आपने भी पढ़ा होगा, मैंने नहीं पढ़ा था because मैंने MBA नहीं किया है. So what is 80-20 rule? In life, whatever you are doing, 20% of the work will give you 80% results. आपके टीम मेंबर्स अगर हैं तो आपके 20% टीम मेंबर्स आपको 80% एफिशिएंटली वर्क करके देंगे। आपके रेवेन्यू में आपके जो 20% क्लाइंट्स हैं वो आपको 80% रेवेन्यू देंगे। आपको ये आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेरा 20% कौन सा है।
क्योंकि फिर आपको उसी 20% के ऊपर ही अपनी मैक्सिमम एनर्जी लगानी है और एक्सपर्टीज और अच्छी करती चले जाने हैं। आपके जो 20% टीम मेंबर्स हैं जो सबसे ज़्यादा एफिशिएंटली काम करते हैं, आपको उनको और ज़्यादा समय देना है, सो दैट दे बिकम मोर लाइक यू। और आपके जो क्लाइंट्स हैं जो आपको 80% रेवेन्यू देते हैं, उन्हीं क्लाइंट्स के थ्रू आपको बार बार रिपीट परचेज कराना है, सो दैट आपका रेवेन्यू भी बढ़ता चला जाए। So now my audience wanted to know, as a business owner, what is the work which you will never do? घर के काम और जो हमारे ऑफिस में ऐसे काम हैं जिसके लिए हम लोग स्टाफ हायर कर सकते हैं, लाइक क्लीनिंग, यूटेंसिल्स एंड ऑल, इन सब चीज़ों में मैं नहीं पढ़ना चाहूँगा। रीज़न भी, एक तो जब आप ये किसी को करने के लिए देते हो, आप एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रहे हो, और दूसरा वो मेरे 1 घंटे के टाइम का वैल्यू जस्टिफाई नहीं करता है। और हर बिजनेस ओनर को ये पता होना चाहिए कि उनके 1 घंटे की वैल्यू कितनी है। तो ऐसा काम जो कि आप आउटसोर्स कर सकते हो, मतलब अगर आप किसी को उस काम के लिए 1 महीने का 15,000 रुपये दे रहे हो, वो बंदा 25 दिन काम कर रहा है, यानी कि 1 दिन का आप उन्हें 600 रुपीज़ दे रहे हो। अगर वो 10 घंटे काम कर रहे हैं तो उस घंटे का वैल्यू हुआ 60 रुपये। तो वो 60 रुपये पर आवर वाला वर्क मैं कभी भी नहीं करना चाहूँगा। ऑलराइट। एक चीज़ जो मैं सच में जानना चाहती थी, जब मैंने सोचा था जब ये पॉडकास्ट होगा तो वी विल डिस्कस दैट, आपके सारे इवेंट्स, वेबिनार सोल्ड आउट कैसे चले जाते हैं? दैट्स व्हाट, बिकॉज़ आई नो आजकल ना लोगों ने मार्केटिंग स्ट्रैटेजी भी शुरू कर दी है। लेट मी टेल यू, गिव एन एग्जांपल ऑफ दिलजीत दोसांझ का जब वो होने वाला था, इवेंट होने वाला था, तो उन्होंने मार्केटिंग स्ट्रैटेजी लगाई थी कि सारे जो वो थे वो सोल्ड आउट जा रहे थे। बट आई नो फॉर श्योर बिकॉज़ यू नो आई हैव बीन फॉलोइंग यू सिंस सो मेनी इयर्स, सो आई वांटेड टू नो हाउ योर इवेंट्स गोज़ लाइक सोल्ड आउट, कैसे? पीछे 3 रीज़न्स हैं। सबसे पहला रीज़न ये है कि हम डेटा के ऊपर वर्क करते हैं। तो वी मेक अ लिस्ट, हमारे पास हमारी ईमेलिंग लिस्ट में कितने लोग हैं, मेरे सोशल मीडिया पे कितने लोग हैं, हमारे पास बायर्स कितने हैं, तो हम उसमें से एक परसेंटेज निकाल लेते हैं कि इतना परसेंट कन्वर्जन होने वाला है। सेकेंडली, हमारे पास ना बहुत सारी स्केर्सिटीज़ होती हैं। मतलब देखो, अगर आपको फ्लाइट से ट्रैवल करना है तो आप क्या करोगे, आप अपना फ्लाइट का टिकट सबसे पहले बुक करोगे, होटल बाद में बुक कर लोगे, बिकॉज आपको पता है कि फ्लाइट का रेट बढ़ने वाला है। ट्रेन का टिकट आप 2 दिन पहले भी कर सकते हो क्योंकि आपको पता है कि प्राइस स्टैटिक रहने वाला है। तो स्केर्सिटी होनी बहुत ज़रूरी है कि इस डेट के बाद टिकट की प्राइसिंग बढ़ जाएगी, इस डेट के बाद ये वाला अपॉर्चुनिटी खत्म हो जाएगा। तो वो स्केर्सिटीज होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड तीसरी चीज़ है कि व्हाटएवर यू कैन नॉट काउंट, यू कैन नेवर ग्रो। तो हमारे डेली के जो भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, हमारी टीम कितना वर्क कर रही है, हम वो सब कुछ रेगुलरली मॉनिटर करते चले जाते हैं। तो Alright. हमको हमारे काम की प्रोडक्टिविटी पता चल जाती है, एंड बिकॉज ऑफ दैट वी आर एबल टू गेट रिजल्ट्स। एक चीज़ इसमें अगर और ऐड करना चाहेंगे, बिकॉज वी हैव हैप्पी कस्टमर्स जिन्होंने हमारे इवेंट्स अटेंड करे हैं, तो वर्ड ऑफ माउथ से भी बहुत सारी सेल्स आती Of course, you know, sales is all about reference है। and you know getting back that customer again. Customer references will work in the market, and secondly, which I said, you know, आपका customer acquisition plus आपका customer retention कितना है. So that's also very important for a business or for an entrepreneur, of course. एक चीज़ इसमें और ऐड कर सकते हैं, अगर आपको कोई भी चीज़ सेल करनी है, यू नीड टू आइडेंटिफाई द पेन पॉइंट। Because of your conversation, you need to amplify the pain point so that people are actually wanting to get the solution to that. And then when you offer it to them, people will buy it hands on. So we wanted to know one thing, कि लोगों को पता भी होता है कि वो अपॉर्चुनिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दे कैन गिव सक्सेस टू देम, बट वो फिर भी वो डिसीजन नहीं ले सकते, लेते नहीं हैं एक्चुअली. सो व्हाई दे आर नॉट टेकिंग दोज क्विक डिसीजन एंड नॉट ग्रैबिंग दोज अपॉर्चुनिटी? उसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि हम लोग लोगों के ओपिनियन से बहुत ज़्यादा डरते हैं। आप कोई भी नई चीज़ करोगे, इट इज़ क्वाइट ऑब्वियस, पहली बारी में, दूसरी बारी में आप उसे अच्छे से नहीं कर पाओगे। सो लोगों के मन में ये डर रहता है, यार लोग मेरा मजाक बनाने वाले हैं, एंड इसी वजह से वो कोई भी नई चीज़ करने से डरते हैं, क्योंकि इनिशियली जो क्रिटिसिज्म आ सकता है, लोग उससे बहुत ज़्यादा डरते हैं। ऑफ कोर्स. बट द पॉइंट ओवर हियर इज दैट एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट वी हैव डन इन आवर लाइफ, ऑब्वियसली पहली बारी में हम उसे अच्छे से नहीं कर पाएंगे, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ही आप उसको इंप्रूव करोगे। ऑफ कोर्स. और इस वाली फाइट में ना 95% पीपल आर देयर कि मैं नहीं करूंगा क्योंकि मेरी बेइज्जती हो जाएगी। तो जैसे ही आप वो फाइट से बाहर निकलते हो, यू ऑटोमेटिकली गेट अहेड ऑफ दीज थिंकर्स। Of course, of course. I think on this note, we are finished with our questions, which we wanted to ask, and of course, our audience wanted to ask. I think there is one last game which we wanted to play with you, and really interesting game again. Not a game, but again, a fun and you know type of questions. So, if you were not an entrepreneur, what would you be? मैं एक्टिंग कर रहा था। That's why you were on MTV. भाई एमटीवी में भी जाने का एक बहुत बड़ा कारण ये था कि मेरे को वो अपॉर्चुनिटी मिली, मुझे लगा है मेरे को काम को भी फायदा देगा, तो मैं चला गया। हाँ, I think you got that fame from हाँ. there, I would say.
Okay, one more question. One superpower you would love to have. मैं बूढ़ा ना हूँ, मेरी एनर्जी इतनी बरकरार रहे कि मैं और काम कर पाऊँ। आप अमर रहना चाहते हैं. हाँ, आई डोंट माइंड दैट। All right. If you could time travel, where would you go? जब हमने हमारी जर्नी शुरू करी थी एंटरप्रेन्योरशिप की 2011, You want to फिर correct? मेरे पास ये सेम नॉलेज तब होती है, पता मैं तोड़-फोड़ मचा चुके होते, हाँ, of बहुत कुछ course. कर चुके होते। So you want to change your past आई experience. डोंट वांट टू चेंज, आपने क्वेश्चन पूछा इसलिए। अच्छा चल. मैं उसको कभी भी चेंज नहीं करना चाहूँगा बिकॉज़ वो अभी हमें बहुत ताकत देती है, लेकिन आपने क्वेश्चन पूछा तो हाँ, तब जाना चाहेंगे, हाँ, ताकि ये sure. गलतियाँ ना करें। All right. What's your guilty pleasure? अ, मेरे को किसी भी चीज़ के लिए ना कन्विंस करने में जब तक मेरे को खुद से रीज़न नहीं आता तब तक मैं करता नहीं हूँ चीज़ों को। तो मैं फिर मेरे ज़ोन में ही रहता हूँ। वो मुझे लगता है कि एक चीज़ है जो मैं थोड़ा-सा चेंज कर सकता हूँ। मतलब मुझे अगर बाकी लोग बोलते भी रहेंगे लेकिन अगर मुझे मैं जो कर रहा हूँ उससे मज़ा आ रहा है तो मैं उस ज़ोन से बाहर निकलता आई थिंक ये ना मोस्ट ऑफ पीपल के साथ होता है. दैट्स व्हाट आई फील बिकॉज आई एम ऑल्सो काइंड ऑफ अ पर्सन. जब तक मुझे इंस्टिंक्ट नहीं आती ना कि ये मुझे करना चाहिए, मैं नहीं करती हूँ. चाहे मुझे दुनिया आके कन्विंस कर ले. दिस हैपेंस नॉर्मली विद पीपल. आई डोंट नो नॉर्मली बट लेकिन मतलब ये चेंज करना भी ज़रूरी है हाँ, दैट यू आर आल्सो विलिंग टू लिसन टू अदर पीपल एंड देन यू मेक योर ओपिनियन एंड टेक योर डिसीजंस ऐसा। ऑफ कोर्स. मूवीज और वेब सीरीज अरे मैं वेब सीरीज़ नहीं देखता भाई। और मूवीज. मूवीज़ कभी-कभी देख लेता हूँ। मतलब मूवी मैं ऐसे देखता हूँ कि 4 डिनर पे मैंने आधा घंटा करके मूवी देखी। वेब सीरीज़ तो मुझे बहुत आई अंडरस्टैंड. आई नो यू डोंट हैव दैट काइंड ऑफ अब टाइम. ये बहुत सारे मूवीज़ या वेब सीरीज़ देखते थे तो मैंने बोलता था आपके जीवन के 8 घंटे बर्बाद हो चुके हैं जो कभी वापस नहीं आने वाले। यू आर एब्सोल्युटली राइट. आई थिंक हमारा ये कॉन्वर्सेशन. वेब सीरीज़ देखी थी स्कैम 1992। मुझे लगा मैंने ये देखा तो मुझे कुछ चाहिए इससे, तो मैंने उसके ऊपर 2 वीडियोज़ बनाए। नहीं, मैंने उसके ऊपर 2 वीडियोज़ बनाए, फिर हमने प्रतीक की टीम को रीच आउट करा, उसके संग मैंने पॉडकास्ट करा। वाओ. मेरे को था कि मैंने टाइम लगाया तो मुझे कुछ तो मिलना कुछ चाहिए तो सबसे। आउटकम. वाओ. That's a unique thinking which we say बहुत ज़रूरी है। actually. So on last thing which I wanted to question you basically, and we will end this podcast on that note. One favorite motivational quote. एक मैं बार-बार बोलता हूँ, व्हिच इज़ स्टैंडिंग एट द बॉटम लुकिंग एट द स्काई, हाउ कैन यू विन अ बैटल व्हेन यू डोंट इवन ट्राई? Wow, how beautifully Rahul has said this. I think on this note, we are done with the questions. If there is any messaging you wanted to give to people, you can. Camera is yours. I feel that so many of us are not living our best versions in our life and not achieving as per our abilities only because we are living in a cocoon wherein a lot of people don't believe in us. And because of that, we also feel that we are not capable of doing a lot of stuff. One thing which has helped me achieve whatever we have in our life is because of the kind of people whom I am surrounded by. आपकी लाइफ में ऐसे लोग होने बहुत ज़रूरी हैं जो कि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा करें। मेरा एक पॉडकास्ट हुआ था एक अमेरिकन एंटरप्रेन्योर के संग, ग्रांट कार्डोन। तो आई हैव टोल्ड माय फ्रेंड वेरी एक्साइटेडली, अरे यार मेरा ना उनके संग पॉडकास्ट है। माय फ्रेंड वाज लाइक कि आपका नहीं होगा तो और किसका होगा? का बात तो सही है, मेरा नहीं होगा तो और किसका हो? तो आपको वो ना कन्विक्शन मिलते रहना बहुत ज़रूरी है। जब भी मैं उनसे बात करता हूँ ना तो हर चीज़ को लेके अरे बाबा हमने आपको एमबीए टाइम से देखा है, अब बहुत ही फोड़ो, अब बहुत ही फोड़ो। इमेजिन करो एक तरफ से आपको कोई लोग नेगेटिविटी दे रहा है, तो अगर वो चीज़ आपको पुल डाउन करेगी तो ऐसे लोग जो आपको स्ट्रेंथ देते हैं, उन लोगों को रखना बहुत ज़रूरी है। अपनी लाइफ में. यस, बहुत ज़्यादा। बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि अगर कोई आपको आपको करेज देते रहे। एग्जैक्टली कोई आपको डिग्रेड कर रहा है, डीमीन कर रहा है ना, अगर आप उन लोगों के साथ बैठ रहे हो, उन लोगों के साथ रह रहे हो, तो या इट विल आप नॉट. बातें भी वैसी कर रहे हैं। आप नहीं भी एग्जैक्टली. कर रहे हैं, अगर वो उस तरीके की बातें कर रहे हो तो आप वहीं अटक जाओगे। So you know what, when it happens with me, ये हर किसी के साथ होता है. When it happens with me, so I used to call those people who encourage me, and जो उनके words, sentences मुझे motivation देते हैं to do more in life ना, that's absolutely right. Right. So you keep going. So on this note, I think we have done with our podcast. We have given a lot of information to people. We have spoke about self-discovery. We have spoke about decision making. We have spoke about taking a right decision at that point of time. As Rahul said, snippet pe aap bas you take the decision. So on this note, we will be again back with another topic, right? With another guest again. And as I always say, ki, about this self-love and self-discovery to all of my friends, कि जब तक आप अपने आप को नहीं जानोगे, खुद को नहीं जानोगे, आप अपनी वो कैपेबिलिटीज, अपने वो उसूल नहीं जानोगे कि आप क्या हो, आप कभी उस मुकाम तक पहुंच ही नहीं पाओगे. Right. सो द इम्पोर्टेंट पार्ट इज टू नो योर सेल्फ मोर
and to start walking on that direction जो आपका target है. So I think on this notes, sayonara guys. खुद जियो औरों को भी जीने दो. As I always said, we will be back again with another podcast, with another guest, and with another topic. Thank you so much for watching our podcast. Have a lovely, wonderful year and a lovely week ahead. Thank you. Bye bye.